ଆଚ୍ଛା ପଢ଼େଇଲେ ତମରଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଚାପ୍ଟରଟା ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ପଚାରିବ ଆଉ। ଶୁଭୁଛି ତ? ଭଏସ୍ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ଶୁଭୁଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଯେତିକ ବି ଅଛି ତମର ପଲିଟିକ୍ସ ସାରିଥିଲେ ଆମେ କେତେ ଯାଏଁ ତମର ଆଜି ସରିଲା ତମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାପରେ ତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ତମର ଯାହା ସବୁ ତମର ଆଜି ତମର ତ କିଛି ହେଇନି ପଲିଟିକ୍ସର ଚାପ୍ଟର ବଟ୍ କାଲି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ସାରିଥିଲି ଛାଡ଼। ତମର ଆଜି ଆମେ ଆଗେ ସାରିଦେବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେନ୍ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ଦେନ୍ ତମର କ୍ୟାବିନେଟ୍, ତାପରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆଜି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଗେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିଦିଅ କ'ଣ କାହାକୁ ମିଶିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ହୁଏ ମେନ୍ସ ହଉ କି ତମର ପ୍ରିଲିମ୍ସ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ବହୁତ ସାରା ଟୁଲ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କହିବି ତାର ୱିକ୍ କ'ଣ, ଯେମିତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିଜ୍ ସବୁରେ କିଏ କିଏ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିଜ୍ ବି ଥାଆନ୍ତି, ସେ ସବୁଟା ଟିକେ ଶୁଣିବ ହେଲା। Parliament is the supreme legislative body of the India, occupies the preeminent and the central position in the Indian democratic political system. It adopted a Westminster model of the government of the parliamentary system. अच्छा Westminster model माने तमे कौन बुझ्छ? That is the being of the UK's government. ତାଙ୍କର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ବା କିଛିଟା ବଦଳାବ ସହିତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆର୍ଟିକଲ୍ 79 to 122 ଇନ୍ ପାର୍ଟ ଭି, ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ କି କିଏ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ, ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ସହଜ ଭାବିକି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ପାର୍ଟ ହିଁ ଦେଖ ତମର ଏଥର OPS ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ କି ତୁମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ହଉ କେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ଆସି ପଚାରି ଦିଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗ କି ତମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ 79 ଟୁ ନେଇକି 112 ଯାଏଁ ପାର୍ଟ ଭିରେ ତମର ଅଛି, ମାନେ ପାର୍ଟ 5ରେ ଅଛି ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦି ଇସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ, ସେଥିରେ କେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ରହିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଓର, ପ୍ରିଭିଲେଜ୍, ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କି କେଉଁ ମାନେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ବି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଏ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କାମ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କ'ଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ସେସନ୍ ସବୁ, ତୁମେ ଲୋକସଭା ଟିଭି କେବେ ମାରିକି ଦେଖିବ, ସେଠି ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର କନଭରସେସନ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ତୁମର କୋର୍ଟରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କର ହୁଏ ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ସେମିତି ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ସାରା ହୁଏ ତାଙ୍କର ନା ମେନ୍ ସେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ ହେଲା। ଏଇଟା କହନ୍ତିନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ରେସି, ଫାଷ୍ଟ ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, କାରଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଦେଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତ ତାଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଠି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ପୁରା ହାଇ ଥାଏ, ଆମଠୁ ବି ଅଧିକ, ସେ ଯାହା ନାହିଁ ତା କହିପାରିବେ, କାରଣ ଅପୋଜିସନ୍ ବି ଥାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁରି ସ୍ପିଚ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଦେଖିଥିବ କେତେ ରିଉଡ଼ଲି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଇଏ, ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆମଠୁ ଟିକେ ବ୍ରଡ୍ ହେଲା ସ୍କୋପ୍ରେ। ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ମାନେ କିଏ କିଏ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ଲେଜିସ୍ଲେଟର ଯେଉଁମାନେ ବନାନ୍ତି ଲ, ମାନେ ତମର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକ ବି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ରହିଲେ, ତମର ଧର 545 ଜଣ ଲୋକସଭାରେ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ହେଲା, ତାରି ଭିତରୁ ବି ତମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲାଗି ତମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି କି ବଡ଼ି, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ହେଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ବନାନ୍ତି ଲ, ଯେମିତି ତମର ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓସ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି କହୁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ କି ଧର ରେଲୱେ ହେଲା କି ତମର ମାଇନିଂ ହେଲା କି ତମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବନାନ୍ତି ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟର। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ଲ, PM ପ୍ଲସ୍ ଦି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେଇମାନେ ହିଁ ଲ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସେ ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓସ୍କୁ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓସ୍ କେବେ ତମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା, 1861 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟରୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ତମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର ଯେତେବେଳେ କାଳକ୍ରମେ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖା ହେଲା, ତ ସେଠି ସବୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦିଆଗଲା କି ତମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଫିସେସ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେଠି ଲ ବନି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତି ବ୍ରାଞ୍ଚ ୱାଇଜ୍ କେଉଁଠି କାମ ବି ତ ହେବ ନା,
प्रति मिनिस्टर हेड्रे किसी कम भी हम तो सेक्रेटेरिएट थाए सेठी तुम जॉब फब तुम कर अप्लाय देन तकर जुडिशियरी जो माने कि इंटरप्रिट ऑफ द लॉ माने गवर्नमेंट रे माने हेले ऑर्गन हैला बट आम एग्जीक्यूटिव आउ जुडिशियरी देख तुम आर्टिकल 50टा मन रखि कि लेजिस्लेटिव विषय किसी भी ना एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियरी बा सी काम किसी हस्तक्षेप करेंगे ना दी जन दीपटी इंडिपेंडेंट है देन 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली पार्लियामेंट कहा को लेकिन सी तो कला पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट एबे हमें देखिए कि पार्लियामेंट कहा को लेकिन गठित फास्ट तुम हो कि प्रेसिडेंट टिके रो कॉल काट दिया अच्छा देन फास्ट तुम है द प्रेसिडेंट देन तुम नॉट ए मेंबर ऑफ द इदर हाउस बट an integral part of the parliament no bill become an act without in her माने जानथिबो तो सब प्रेसिडेंट कर आसेंट बिना को भी जिनस आक्ट हुए ना फास्ट तुम बिल आसे बिल तुम लोकसभा को जाए देन राज्यसभा को जाए लोकसभा राज्यसभा पर देन तुम जो टाइम रे पास हो गला देन आसेंट पाइबा तुम पार्लियामेंट को जाए बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है कि यही टाइप बिल है थाए कि आसेंट दबाक ही पड़ो एमती ना कि विथहोल्ड करदे पकेट विटो टाइप कारण जो हाफ ऑफ दि स्टेट राटिफिकेशन लगी जाइए प्रेसिडेंट चाहिए केमती करदे विथहोल्ड तो से जो आसेंट दबाक ही पड़े जमी जीएसटी बिल आसाला राज्यसभा द अपर काउंसिल ऑफ द स्टेट द अपर हाउस जहाँकि तुम हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहती द रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन जीतक सब इंडिया स्टेट अच्छा जो मैंने सीनियर्स था आपको अपर हाउस एपाई कहुए ये जो सीनियर्स मैंने बसते देखिए जो तार कंपोजिशन आम देखा भर कौन किए सब एक्चुअली था बट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इंडियन यूनियन न जीतक वॉइस सब राज्यसभा एकजुट हुए से जो कहुए हाउस ऑफ द एल्डर्स देन तुम लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल जहाँ कहती लोअर हाउस बा पॉपुलर हाउस रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द इंडिया एज ए होल माने लोकसभा जो मानक आम दियंती भोट एमपी जहाँ सब करती आम कि नहीं गठित तुम कौन और होगला लोकसभा कारण से सब लोअर हाउस पॉपुलर हाउस ना भी कहती कारण से लोक मान हाउस से लोक मैंने रिप्रेजेंटेटिव को मनोनीत कर छाड़ती है देन देन तुम कौन ए नुआ आसी तुम पीएम नरेंद्र मोदी तुम मे 28 तारीख 2023 गोटे इनागुरेट करते तुम कौन सेंटर संसद भवन जोटा तुम नुआ होता इट इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल भिस्ता रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मन रखिए इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल भिस्ता रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिजाइन बाय द एचसीपी डिजाइन जहाँ आर्किटेक्ट विमल पटेल ये अनुजाई डिजाइन एचसीपी डिजाइन देन तुम सेप हूँ ट्रांगुलर टू मैक्सिमाइज द सेप यूटिलाइजेशन जमी सेप को मैक्सिमम भाव से यूटिलाइज करेंगे से जो सेप से कर ट्रांगुलर एंड सीट कैपेसिटी लोकसभा 888 सीट अच्छी देन तो पिकअप थीम वाइज मैंने मारिक देख तो ये गुड़ाक ना फोटो गुड़ा तुमको देदेवी ग्रुप रे राज्यसभा हूँ 384 सीट जोटा कि आगुरी 500 तुम के राज्यसभा से तुम चेंज हो 828 हो जाए देन तुम राज्यसभा सीट इंक्रीज होगी 384 हो जाए इट इज द लोटस थीम एटा तुम पिकअप थीम देन जॉइंट सेशन कौन ना 1272 सीट बसला भाया इन लोकसभा अच्छे तुम जॉइंट सीटर कैपेसिटी आर सिग्निफिकेंस कौन इट इज द न्यू बिल्डिंग सिंबलाइज ए सेल्फ रिलिएंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दी कॉलोनियल लिगासी से टाइम रू ए जिन चली चली आसी बट ताकू आमर कारण डिलिमिटेशन कमिशन वाइज लास्ट होता 2002 2026 माने से जो आमेंडमेंट होता 2026 से जिनस को फ्रीज कर रखाला तो जिनस ये फ्रीज हो जाऊँगी तो एजाएँ आम इंडिया जनगणना जहाँ 2011 होता से 2011 पर ना जनगणना हो ना डिलिमिटेशन कमिशन आसी डिलिमिटेशन कौन कहे तुम प्रति कन्स्टिट्यूएंसी रू केते रिप्रेजेंटेटिव जीवे तुम डिलिमिटेशन कमिशन ही डिसाइड कर कारण तुम डिलिमिटेशन कमिशन कौन सब देखे जो मान धर तुम आज यही जाजपुर धर कि भुवनेश्वर धर एति लोक अच्छा तो एठू आपको एति कन्स्टिट्यूएंसी करी डिवाइड कि एठू एति रिप्रेजेंटेटिव जी 10 वर्ष आगरू बट एबे जदि तार जनसंख्या बढ़ी 2x हो जाती तो से दीटा रिप्रेजेंटेटिव से जो आगुरी जो 10टा लोक को देखुले सी ए से 20टा लोक को ही देखुं तो से जो ये सब सीट इंक्रीज है फ्यूचर डिमिटेशन 2026 हम है
देन तुम दी सेंगोल द हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट द गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्कल्पचर जहाँ ओरिजिनली गिफ्टेड टू दी जवाहरलाल नेहरू बाय दी Adams, the priest of Tamil Nadu, on the eve of the independence 1947 to symbolize the transfer of the power. ମାନେ ଆଙ୍କର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ତମର ସିଙ୍ଗଲ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ତମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଲ ହେଇଛି ସ୍ପିକରର ଚେୟାର ଇନ୍ ଦି ଲୋକସଭା ହାଉସ୍ ନିୟର ଦି ଲୋକସଭା ହାଉସ୍ ତମର ସ୍ପିକରଙ୍କର ଚେୟାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ତମର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପିକ୍ଚରଟା କାହିଁକି କରିବ symbolize the dharma right house आगे देखिए symbolize the dharma it is the कौन righteousness and just the rule ये जगह सब देखिए कारण तुम नुआ नुआ जो 2026 जोड़ा डिलिमिटेशन हम ये न्यूज को आसो symbolize कौन तार धर्मा टॉप ऑफ जो फीचर कौन ये गोटे नंदी अच्छी सैकेड बुल एंड रिप्रेजेंटेटिंग द जस्टिस नंदी तुम जस्टिस को डिमार्केट करे ये गोटे सैकेड बुल बा होली जहाँ कहते जहाँ आम आगुरी मानि आमर हिंदू कल्चर है शिवंक बाहन बोली देन इंस्टॉल नियर दी छाड़ माने स्पीकर चेयर पाखे ये सब जिन इंस्टॉल हो रूम देखे दूसरी सिंगल तो फोटो पे এইটা সিঙ্গল এটা ଗୋଟେ ତମ ଲୋକସଭା ହାଉସରେ ଲଗା ହେଇଛି ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଦେଖିଥାଏ ଗୁଡ଼ାକ ଏତିକି ଭିତରକୁ ଦେଖ बस करंट अफेयर अच्छी मैंने तो देखीद इट इज ए 5 फुट लॉन्ग गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्कल्पचर symbolize the righteousness justice authority historically used to mark the transfer of the power in Tamilian kingdom से तांकु एटा देइथिले जवाहरलाल नेहरू को ता ना होची सेंट्रल सेटा भी तमर एटी प्लेटेड अच्छा केमती तुम लोकसभार मारिक देख चाटा देखिए दूसरी लंबा हो न्यू स्पीकर चार्जर कौन से छाड़ मुझे तुम फटो पठेदेवी कला बेलू लेट हो पुणी मारे पड़ो इंडिया आउ कार देखे दो यूके फिकर चार्ज बेसी जूम होनी यार पाखे सब अच्छी है तुम जिते सब स्पीकर चेयर पाखे सब अच्छी धर्मा जो सब जिनस ये खाली जिनस मन रखियो ये टर्म गुड़ाक जमती नंदी धर्मा कि तुम सिंगल ये सब जिनस कौन ये जो तुम गोटे मारिक देखिली फटो फटो देखी टे डाउनलोड कर रखी मन पड़ने तो छाड़ राज्यसभा एक्चुअली कंपोजिशन कौन मिनिमम स्ट्रेंथ 250 एबे तमर जमती 238 जन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूटी छोट हो एबे आसिला आज्ञा आसिला अच्छा ये तुम 238 जन रहती इलेक्टेड प्लस तुम 12 जन नॉमिनेटेड जो मेंबर से रहती है
जे कि तुम करेन्ट स्ट्रेंथ तुम 245 अच्छा बट 229 जन तुम स्टेट रू आसती 4 जन तुम यूटीज रू अच्छा 12 जन नोमिनेटेड होती जो मैंने एच भी अच्छा बट तुम आंग्लो इंडियंस जो मैंने तुम नुआ जो रिसेंट आमेंडमेंट आसाला से तुम आंग्लो इंडियंस को आउ ना से मैंने से 2 जन सीट आंग्लो इंडियंस किए भी तुमको कही है। अच्छा तुमर आंकर इलेक्शन हुए फॉर द इनडायरेक्ट जो इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड सिस्टम हूँ कौन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कौन जो जिनसा है भलसे बुझिल तो केमती तुम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हुए आटा कौटी हुए तुम लेजिस्लेटिव असेंबली क्या भितर हुए तुम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मान बुझुच तो 4 जन जमी मेम्बर थे ये क्या भोट भी तुम जमी ये लोकसभा आउ राज्यसभा केस जमी प्रेसिडेंट को मनोनीत करती ये सेमती ये तुम जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से मैंने बाछंती को मैंने राज्यसभा को जीवे यहाँ भितर हुए माने जो मैंने आमको बाछंती आमे तांको बाछु एटा डायरेक्ट इलेक्शन थ्रू रे हुए माने आमे तांको वोट दउनु तो विधानसभा जो विधानसभा काम कौन हुए विधानसभा तुम सब जहाँ सब सेन्टर हुए विधानसभा भी तुम से बजेट आसे सब जिन हुए ता सहित जमती से प्रेसिडेंट को बाछिकी माने रखती ये सेमती स्टेट रू गोटे 2टा 3टा रिप्रेजेंटेशन वाइज सब पठाती कि सही तुम विधानसभा से सब हुए आमे डायरेक्ट भोट दियंती तो से जो राज्यसभा से ही था इलेक्शनटा इनडायरेक्ट हुए से जो आम डेमोक्रेसी को गोटे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहुए आम डायरेक्ट भोट दियंती थ्रू दी से जो पास्ट पोल सिस्टम द्वारा बट से माने आमर हेड को बाछंती है देन से तुम ओपन बैलेट हुए क्रॉस वोटिंग इन प्रिवेंटेड बाय द सोइंग एंड द बैलेट टू द पार्टी एजेंट इंट्रोड्यूस टू द क्रॉप करप्शन एंड हॉर्स ट्रेडिंग एटी सेठी जमी सिक्रेट बैलेट होता ये ओपन बैलेट रे सब जिन हुए क्रॉस वोटिंग इज प्रिवेंटेड क्रॉस वोटिंग ये हुए सोइंग द बैलेट टू द पार्टी एजेंट और से इंट्रोड्यूस टू द कप माने एमती सब जिन हुए ना जदि किसी करप्शन हो कि कौन से जो ये जमी सिक्रेट बैलेट रे तुम से क्या को देखा जाए बट ये सब सिस्टम ओपन बैलेट रे हुए कौटी तुम लेजिस्लेटिव असेंबली रे विधानसभा रे नोमिनेटेड हो प्रेसिडेंट 12 जन मेंबर को जो आर्ट कल्चर साइंस रे जो एक्सपर्ट थे बाछंती मिसिक तुम 250 जन मेंबर हो गले लोकसभा रे मैक्सिमम 230 मेंबर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन एंड 20 मेंबर्स पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ द इलेक्शन माने तुम 2 जन जो एंग्लो इंडियंस थे सी 20 जन भितर तुम सी एवं ना माने तुम removed by the 104 number constitutional amendment act of 2019 and maximum strength 550 after the 104 माने maximum 530 member chosen by the direct election आउ 20 जन member parliament can prescribe the manner of election parliament चाहिए ता अनुसार यूटीज रु लोक को आनिकी एठी रखी पारियो। अच्छा एबे तुमर 543 जन लोक अच्छा 545 थे 2 जन आंग्लो इंडियंस चलीगला ये 524 जन स्टेट रू अच्छा आउ 19 जन यूटी रू अच्छा बट यूटी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 20 अच्छी है देन इलेक्शन ऑफ द लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन हुए द फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एफपीटीपी माने आमे जमती डायरेक्ट जाइए तुम बैलेट रे गाँव फाँरे जमती सब जाइए भोट दियंती सेटा फास्ट पास्ट पोल सिस्टम आम डायरेक्ट गोटे एमपी को भोट दियंती लोकसभा को आउ तुम एमएलए को दियंती भोट एमपी एमएलए को एमएलए मैंने जाइए सेठी इलेक्शन फिलेक्शन होगी तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा राज्यसभा को लोक मानक पठाती है। वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम दी 21 to 18 जानी 61 नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 मन रख बहुत थर रिविजन है आउ सीट रिजर्व ऑफ द एसटी एंड एससी बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन रेशियो आर्टिकल 330 रे तुम लिखाई पॉपुलेशन रेशियो वाइज एसटी आउ एससी रिजर्वेशन रहिबो तो आपको कहती यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज जहाँकि तुमको ब्रिटिश सरकार केवे दे ना तुम पूरा एंजॉय कल तुम कन्स्टिट्यूशन लागू है तुम जो इंडिपेंडेंस आसला तुम सोवरेन हेल
तमर फास्ट पास्ट पोल सिस्टम कौन जान प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल भोट कौन जान कही दूसरे आउे जदि तुम चार जन जाक मेम्बर थी चार जन मेम्बर भितर जहाँ कोई भोट दिहब जदि 2 जन मेम्बर को बाछार अच्छे बट 4टा ठिया मु समस्त को भोट दिहब बट जी हारी जाऊँगी भोटा वेस्ट जाए माने ये कौन आम जब 2 जन एमएलए ठिया गोटे एमएलए को जब भोट दौरान सी जब जीति जाऊँगी नेक्स्ट एमएलए जहाँ जहाँ सब जो मैंने सब भोट देते तार भोट सब वेस्ट बट ये सेमती हुए जी हारीगला भोट गुड़ा पुणी ट्रांसफर हो जाए गोटे मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा जाए 51 कि जे सेतिकी जाए सब भोट गुड़ाक ट्रांसफर हो जाए जो लोक हारी हारी जीव तो तांको भोट ट्रांसफर हो जो मैंने से 51 थ्रेशोल्ड कि जब सेट होता क्रॉस हो गले तो से जान तुम राज्यसभा मेम्बर को जी है। अच्छा 104 नंबर अमेंडमेंट ऑफ 2019 SC ST reservation is extended the reservation seats for the ST and SC in the Lok Sabha and the state assembly for the another 10 years till the 2030 reservation तमर extended ହେଇକି ରହିବ जानल तमर को रिजर्वेशन कथा हम कहूँ and Anglo Indians reservation and Anglo Indians removed 2 members of the Anglo Indians community of the Lok Sabha and 1 member of the state assembly by the governor एटा भी मन रखिथिबो जो गोटे मेंबर स्टेट असेंबली द्वारा असेंबली को गवर्नर द्वारा अपॉइंट हुए से भी तुम ना है खाली लोकसभा नु तापर रीएडजस्टमेंट आफ्टर द सेंसस और द डिलिमिटेशन कमिशन कौन इट सेट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इट्स ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट आ ऑर्डर को तुम कोर्ट को चैलेंज करके नहीं पार ना कारण ये तुम पावर पाँच कौटू आर्टिकल नंबर 82 ये तुम हूँ डिलिमिटेशन कमिशन कौन कौन सब छाड़ अच्छा it is the ST SC reservation is extended the reservation of the छाड़ तो सब गला then delimitation commission कौन हुए sets the boundary of the constituency in its order cannot be challenged in the court current basis रे 2071 रे सेंसस रु for the still seat allocation 2001 रे सेंसस for the constituency boundaries but ता परटू अच्छा current basis रे 2 थर होइछि but total delimitation हमर 4 थर होइछि हला 4 थर भितर तुमर नेक्स्ट लास्ट थर जो होइतिला सेटू तुमर 2026 जाए जिन सब तुमर फ्रीज कराई रखा है 84 नंबर अमेंडमेंट रे why freeze to encourage the population control measures so state without high population growth north india जेमती are not rewarded with more seat at cost from the performing seats माने तुमर एटा फ्रीज एथिपाई हेतिला तुमर जो सीट माने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करिया पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कारण तुमर सेही अनुसार रिप्रेजेंटेशन तो साउथ वाइज तुम नॉर्थ पॉपुलेशन अधिका कौटी तुम यूपी देख से गोटे देश हो यूपी कारण यूपी केतेटा डिस्ट्रिक्ट अच्छी देखी तुम 51टा ना तार केतेटा डिस्ट्रिक्ट खाली ता भीतर केते लोक ये पुणी से छाड़ बट से जो तुम जिन को फ्रीज हो रही कि तुम जमी जदि तुम पॉपुलेशन कंट्रोल न कल इट इज नॉट ए रिवार्डेबल जिन रिवार्डेबल से रिवार्ड देला वाला जिन नुह तो से जाए 2001 रु 2026 जाए तुमको टाइम दौचु पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर कारण नॉर्थ इंडिया पॉपुलेशन बहुत साउथ इंडिया तापर 106 नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 द नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो जे तुम आम पढ़ी बोधे आज सकाल ना कौन प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट फॉर द वुमेन इन द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द NCT नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली 3टा जाकर तुम 33% ऑफ द रिजर्वेशन महिला को मिल इम्प्लीमेंटेशन विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड आफ्टर द फर्स्ट सेंसस पब्लिश आफ्टर द एक्ट है नुआ सेंसस जो हम तापर ये सब जिन लागू हम सनसेट क्लॉज द रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू फॉर द 15 years दैट इज कॉल्ड सनसेट क्लॉज मीन्स दिन अस्त हम 15 वर्ष पर आम देखा कि पुणी आम कंटिन्यू करवा सूर्य को उदय करवा कि ना रोटेशन केमती हुए कौन रिजर्व सीट विल बी रोटेटेड आफ्टर इच डिलिमिटेशन प्रति डिलिमिटेशन हो गला तापर सीटा रोटेट हम अच्छा राज्यसभा को कहते आम परमानेंट हाउस कंटिन्यूइंग चैम्बर नॉट सब्जेक्टेड टू द माने डिजोल्यूशन से केबे डिजोल्यूशन हो जाए छुआ भी आम पढ़ी पढ़ी आसवा राज्यसभा केबे भांगे ना मेम्बरशिप 6 वर्ष बट प्रति 2 वर्ष 1/3 मेम्बर
ବାହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଜାଣିଥିବା ଆମେ। ଦେନ୍ ଲୋକସଭାରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ହାଉସ୍, ନର୍ମାଲ term is 5 years from the date of its first meeting, subjected to the dislocation of the dissolution by the president, and term can be extended during the national emergency 1 year at a time। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଲାଗିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ପାୱାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ କହିକି ଲଗାଇଥିଲା? ଫର୍ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍। ତାପରେ ସିନା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆର୍ମ ରିବେଲିୟନ୍ ହେଲେ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଲଗେଇ ପାରିବ। क्वालिफिकेशन 84 नंबर आर्टिकल, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार, मस्ट सब्सक्राइब टू अ ओथ बिफोर एन इलेक्शन कमिशन। एज रिक्वायरमेंट होची तुम राज्यसभा को जीवाकू तुमको 30 वर्ष दरकार, आ लोकसभा को जीवाकू 25 वर्ष दरकार। मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। देखिए एटा हमें गवर्नेंस रे आरपीआई एक्ट ऑफ 1951 and RPA of 1951 must be a registered elector for a parliament constituency. Residence is state is no longer required for the Rajya Sabha। माने सी तमर मस्ट बी रेजिस्ट्रेड इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएंसी रे कोठी रेजिस्टर हेतिया दरकार। कोठी लिखा है आरपीआई एक्ट 1951 देखियो कौन कौन अच्छी ए छाड़। आग डिस्क्वालिफिकेशंस केमती हुए आर्टिकल 102 तुमको कौच आग डिस्क्वालिफिकेशन केमती होची जदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एमाने होल्ड करि थांते, जेमति कि तोर पांड्यान जदि एबे तमरो कोठी थिले आईएएस ऑफिसर थिले, तो सी जदि एबे सीएम रे ठियाई थांते, तो ताको पई आईएएस पोस्ट आउची गोटे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जोटी गवर्नमेंट रो पैसा जाउची। जेमति तुम इंडिया डुअल मेंबरशिप को कंटिन्यू करे नाही कि सपोर्ट करे नाही, सेमति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी सपोर्ट करे नाही। एकात्रे तुम दीदीटा जो माने जगार मेम्बर रही पार ना लोकसभा आउ राज्यसभा जहाँ गोटे हाउस तुमको छाड़िया पड़ो। जब तुम अनसाउंड माइंड थिल, जब कोर्ट तुमको डिक्लेयर कला कि तुम आउ कम कर अक्षम, तुम माइंड कम करूनी एंड इज एन अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट, तुम जब कौन टाइम क्राइम जिन कल अच्छा तापर कौन अच्छे तुम इट इज नॉट ए सिटीजन ऑफ द इंडिया और हैज वॉलंटरीली अक्वायर्ड द फॉरेन सिटीजनशिप। जदि तुम फॉरेन सिटीजनशिप माने कौन जब तुम कहली हूँ आर्टिकल नंबर केते 22 वो लिखा है जब तुम आउ कहार मेम्बरशिप नहीं जीव तुम आउ फॉरेन आउ इंडिया रही अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 तुम कौच तुम जब तुम स्वेच्छा आउ कहार सिटीजनशिप नहीं जीव तो तुम इंडियन सिटीजनशिप को तुम हर बस से द्वारा भी तुम क्वालिफिकेशन पाइपर ना। तो सब पॉइंट गोटा गोटा कर मन रख। आरपीआई एक्ट ऑफ 1951 आम डिस्कस करवा पार्ट ऑफ द गवर्नेंस रे एंड इट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लास्ट सब ये लिखा जाए कोड लिखा जाए जमी आर्टिकल नंबर 11 तुम लिखाला कि आउ जहाँ भी सिटीजनशिप डिसीजन तुम किए क्या हाथ में अच्छे पार्लियामेंट का हाथ में अच्छे से जो तुम सिटीजनशिप जो एक्ट ऑफ 209 जोटा कौन ना 2019 जोटा नुआ कि 2014 नवेम्बर मास पूर्वर जीक भी मुस्लिम छाड़ी जहाँ भी आसवे जो मैंने इंडिया को से सब भारतर सिटीजनशिप हो बट ये सब क्या हाथ निर्धारित होती तुम पार्लियामेंट का हाथ में। सेम तुम आर्टिकल 35 भी लिखा है कि आ छड़ा फंडामेंटल राइट विषय जब एमती कौन आसे जिन सब पार्लियामेंट हाथ में अच्छी बट डिस्क्वालिफिकेशन जिन भी सैया आ छड़ा भी तुम जहाँ जिन थी पार्लियामेंट हाथ में निर्धारित होगी अच्छी है। चलो प्रेसिडेंट ऑन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमिशन तापर डिस्क्वालिफिकेशन तुम केमती हुए आरपीआई एक्ट ऑफ 1951 वाइज जदि तुम फाउंड गिल्टी ऑफ एन इलेक्शन ऑफेंस और ए करप्ट प्रैक्टिस बुझीपार किसी बुझा दरकार नहीं जब तुम से भाई जिन किसी इनवल्व तुम गिल्टी पाइल देन आरपीआई एक्ट ऑफ 1950 अच्छा आरपीआई एक्ट ऑफ दुईटा अच्छे गोटे 1950 अच्छे रिवाइज वर्सन 1951 अच्छे कम जिन किसी जिन नुआ आड होती कौ कथा तुमको कही राहुल गांधी जमी तुम धर 2 वर्ष जेल कहीं कारण 2 वर्ष जेल हो गला तुम 6 वर्ष जाए कौ कन्स्टिट्युएंसी वोट लड़ी पार ना से जो से कोर्ट केस गला छाड़ तापर कौन है जान एंड कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग यहीटा जो इम्प्रिजन फॉर द 2 years और दी मोर डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम कन्विक्शन प्लस 6 years आफ्टर द रिलीज। तुम जो टाइम रू जेल बाहर से 6 वर्ष जाए तुम कौ कन्स्टिट्युएंसी लड़ी पार ना तुम डिस्क्वालिफिकेशन हो। फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस जिते सब खर्च कर
ଛାଡ଼ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ତୁମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତାର ସବୁ ଖାତା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। and has interest in government contracts workers or the services ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତୁମର ଅଛି ଇଏ ବି ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି ତୁମର ଖାଲି ଧର ତୁମେ ଏବେ ଅଛ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଡାକିକି ଦେଇଦେବି ଯେମିତି ତୁମର ଇଏ କଲେ କି ତୁମ ଅମିତ ଶାହ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ କି ସେମାନେ 500 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମର ଯେଉଁ ହେଲା E20 ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଯାହାକୁ ତୁମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ସାଥ ଦେଇ ଖତମ କରିଦେଲେ। ତ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଦେଖିଲ। ତୁମେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ତୁମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱାର୍କର ସର୍ଭିସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଅ ତୁମେ ନ ନେଲେ ତୁମ ଭାଇ ନାଁରେ କରିଦେବ ଇଏ ନାଁରେ କରିଦେବ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ୍। ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲ ତୁମ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେବ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦ ଡିସମିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ଦି କରପ୍ସନ୍ ଅର୍ ଡିସଲୋୟାଲିଟି ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହୁଛି। Rahul Gandhi was disqualified in 2013 under the provision defamation case। ସେ କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଶୁଣିଥିବ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡିଫର୍ମେସନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ଲିଲି ଥମାସ ଭର୍ସେସ୍ ଦି ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ିଟା ଆସିଥିଲା କି ଷ୍ଟକ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ସେକ୍ସନ୍ 84 କ୍ଲଜ୍ ନମ୍ବର 4 ଅଫ୍ ଦି RPA ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1951। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ନା MPs ଆଉ MLA had 3 month window to appeal against the conviction during which disqualification was stayed। The disqualification is immediate upon the conviction for the 2 year plus 4 years। ମାନେ ଏଠି ଜିନିଷ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ତୁମର ବଡ଼ିଟା ଆସିଲା କି ତୁମର ଯେଉଁ MP MLA କୁ ତୁମେ ଆଗରୁ ଧର ତୁମରକୁ MP MLA କୁ କରିଦେଲ ଇଏ ତ ମାନେ କନଭିକ୍ସନରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିଦେଲ ଆଉ ତା ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ଆଉ ରଖିନ କି ତାର ବେଗୁନାଇ ସାବିତ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ତା ପଛରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ଲିଲି ଥମାସ କେସ୍ ସେଇଠୁ ତୁମର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଶୁଣାଗଲା କି ତୁମର ଆଟଲିଷ୍ଟ MP MLA ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କୌଣସି କେସ୍ରେ କନଭିକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖାଯାଉଛି ତ ତାକୁ 3 ମନ୍ଥର ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଦିଆଯାଉ ହେଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ସେଇ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ ବଟ୍ ତୁମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ତା ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଦି ଜଜମେଣ୍ଟ ଏନ୍ସିଓର୍ଡ ଦି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଲ ମେକର୍ସ ଅପନ୍ ଦି ପ୍ରବିଟି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା। ମାନେ ତୁମର এইসব জিনিস ইন্টরপ্রিটেসন কাହିଁକି ହେଲା ତୁମର ଯେତେ କହିଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଟୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ହେଲା। ବଟ୍ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ଯେମିତି SR ବୋମାଇ କେସ୍ରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ୱେପନ୍ ଭାବେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଜିନିଷ BR ଆମ୍ବେଦକର ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲେଖି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ କି ହଁ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ରହୁ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାତରେ ବି କିଛି ପାୱାର ରହୁ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆରି ଫେଲୁଅର୍ସ ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ତାକୁ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କଲ କ'ଣ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପାଇଁ ତୁମ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କରାଗଲା କି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଆସିଲା ନା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ନହେଲେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତା ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। ତୁମର 1951 ତୁମର ଯେଉଁ ଶଙ୍କରୀ ପ୍ରସାଦ କେସ୍ରେ କହିଦେଲା ସେ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ବାଇ ଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର ବାଇ ଏନିୱାନ୍। ବଟ୍ ତାପରେ କେସେସ୍ ଆସିଲା ଗୋଲକନାଥ କେସ୍ ହେଇଗଲା ତୁମର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ ତୁମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା April 24 of 1973 ପରଠୁ ତୁମର ଯେତେ ବି କେସେସ୍ ଆସିବ ମାନେ ସେଠି ତୁମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଲାଗିବ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ଦେନ୍ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମର କହିଥିଲି କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା 52 ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1985ରୁ ତୁମର ଆସିଥିଲା ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପୁରା ଭଲ କାରଣ ପଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଭିତରେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏତିକି ହେଲା ପଲିଟି ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଲିଟିକ୍ସ କେମିତି ଚାଲିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମ ପଲିଟିକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ କାମ କେମିତି କରୁଛି ହେଲା। କାରଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ବଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତା'ର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ। ଦେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ଦି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଫ୍ ଦି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯଦି ତୁମେ ଦେଇ ଦେଉଛ ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। and କ'ଣ voting or abstain from the voting contrary to a party decision whip। ଆଚ୍ଛା whip କ'ଣ କହିବି whipର କାମ କ'ଣ ତୁମ ଫ୍ଲୋରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ whip ହିଁ ଦେଖେ। ଧର ଆମେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 9 ଜଣ ବିଲ୍ ସପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଦେଉନି ଭୋଟ୍ ତ ସେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ତାପରେ ଲାଗିଯିବ ବିକଜ ତୋ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ହୁଇପଟା କିଏ ସେଟା ପଡ଼ି whipର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି। whip ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ଫ୍ଲୋରର ଦେଖନ୍ତି ସେ ଜଣେ whip ଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ସେସନ୍ ହେଲା whip ଦେଖନ୍ତି କି ଯେତିକ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତୁମ ପାର୍ଟି ଇଏରେ ଦିଆଯାଉଛି ତ କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଧର ଭଲ ବିଲ୍ଟେ ଆସିଛି ଧର ଫାର୍ମ ଲ ଭଲ ନ ଛାଡ଼ ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅ ଫାର୍ମ ଲ ଧର ଆମେ 10 ଜଣ ଅଛୁ ଲୋକସଭାର ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବର ଆମ ଲୋକସଭାରେ ଧର 10 ଜଣ
आम फ्लोर गोटे अच्छे ह्विप देखिए ये 10 जन ठीक ठाक भोट पार्टी दौरान तो माने तुम बिल लोक आमको लोक मनोनीत करके पठे तो तुम 9 जन राजी तुम राजी होन आइदर तुम एंटी डिफेक्शन लॉ लगे ना तुम राजी हो सेमती किसी ऑप्शन ना कि मुझे राजी होनी मत भल लगुनि तुम जान कि सेमती हो पारे भी तो वी देखिए से सब जिन कि तुम पार्टी एग्नेस्ट भोट दौर कि तुम पार्टी लाइन अनुसार कि भोट दौनी तो से सब जिन तुम ह्विप गोटे फ्लोर गोटे ह्विप था देखिए ह्विप्र अच्छी स्लाइड अच्छी and it is independent member joining any political party गोटे इंडिपेंडेंट मेंबर जे इंडिपेंडेंट भाव मनोनीत होती जदि पर जाइए मुड चेंज करदेला कि ना 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 आउ पैसा लालसार कारण किसी लोक करती खास कर तुम कॉलेज इलेक्शन तुम देखती हो सब जिन छोट छोट जिन बट देखी जिन पैसा लोक ठिया हुआ बट तापर पुणी पैसा पत्र देकी किसी ना तू आउ ठिया होना तो से भाया जिन नुह बट किए मनोनीत हो सारा पर जब आउ पार्टी को भी चेंज कर दूसरी भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगे नोमिनेटेड मेंबर जॉइनिंग ए पार्टी आफ्टर दि 6 मंथ और नोमिनेटेड मेंबर को पाखे थाए ऑप्शन कि तुम 6 मास भितर जब चाहिए को भी पार्टी को तुम जॉइन कर बट तुम यदि 6 मास पर ये सब जिन कर देन तुम एंटी डिफेक्शन लॉ इज एक्टिवेटेड तापर डिसीजन ऑफिस एसो हाथ थाए स्पीकर हाउस आम देखा जो टाइम आर्टिकल नंबर देखिए छाड़ बट स्पीकर को पाखे सब थाए चेयरमैन इन दि राज्यसभा जुडिशियल रिव्यू इन दि इन दिस केस एंटी डिफेक्शन लॉ जब क्या लगी जाऊँगी ये तुम जुडिशियल रिव्यू इज एप्लिकेबल कौट होता ना तुम कियोटो होलान केस तुम जो होता से तुम भर्डिक्ट आसला आम जो टोटाल केस भितर को जीवन किए घर कौटी कहीं आसला कौन होता छाड़ आमर खाली मेन इंपोर्टाट जिन हूँ जजमेंट कौन भर्डिक्ट कौन कौन पॉलिटिक्स रे से सब जिन इंटरप्रिटेशन है मैटर कौन थी एक्चुअली यदि सावन केस कथा देखिले केशवानंद भारती कथा देखिले से सब जिन कौन कह लैंडमार्क केस स्टोरी वाइज भल लगे जिन शुणा बट सबू केस एमती देखा दरकार नहीं कारण आम पॉलिटिकल करूना वी आर द नॉट PhD स्टूडेंट जस्ट फॉर द बेसिक नॉलेज दरकार जी सिविल सर्विस पे एंड ठीक अच्छे 91st नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 इट इज कॉल्ड एज द मर्जर प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ एनी मर्जर टेक प्लेस with 2/3 of the member of the party agree to such merger provision कौन जब जाऊँ 2/3 मेम्बर तुम एकाथरे जाऊच सेटा को तुम कहजनी कि तुम एंटी डिफेक्शन लॉ कल जमी कहली मुझे जड़े मेम्बर कि इंडिपेंडेंट मेम्बर सी जब जाए चेंज होता एंटी डिफेक्शन लॉ लगे बट तुम यदि पूरा आज ए ग्रुप जाऊच कलेक्टिवली तो तम लगे ना limit on the minister total number of the minister including the PM in the central council of ministers shall not exceed 15% of the total strength कैबिनेट मिनिस्टर कथा कहूँ कैबिनेट मिनिस्टर तुम टोटाल स्ट्रेंथ रु 15% रु अधिका हेबे ना 545 15% ही तुम भी कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा कैलकुलेट करदेव के वैकेशन ऑफ द स्टेट केमती वैकेंट हो जाए डुअल मेंबरशिप ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर इन द बोथ हाउस जदि जीति भी जाए गोटे सीट छाड़िया पड़ो मस्ट चूजेन विदिन 10 days नॉट 6 months यहाँ माने यूपीएससी यही छोट छोट जिन कैप्चर करे गोटा चेंचान थी पॉलिटिक्स जमा ऊपर जिन पकाइन पूरा बेसिक जिन बेसिक रू भी एनालिटिकल पार्ट तुम डायरेक्ट क्वेश्चन ओपीएससी आसे यूपीएससी जमा आसोनी एल्स राज्यसभा सीट बिकम वैकेंट इफ इलेक्टेड टू दी लोकसभा व्हाइल बीइंग राज्यसभा मेंबर तो राज्यसभा सीटा वैकेंट रही गोटे सीट जहाँ छाड़िया पड़ो कारण आवर इंडिया डज नॉट सपोर्ट डुअल मेंबरशिप Resignation by writing to the presiding officer means the speaker and the chairman and absence होची absent from all meetings for a period of the 60 days without a permission 60 दिन अधिक जदि सब मीटिंग को तुम absent रोच देन तुम सीट भी वैकेंट पड़ ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन इफ सब्जेक्टेड टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन माने जहाँ भी तुम जदि डिस्क्वालिफाई हो माने भी तुम सीट भी वैकेंट हो किसी असुविधा ना कारण सांगे सांग तुम पुणी रिइलेक्शन हुए बट सांगे सांग हम ना जिन टाइम लगे तो सीट वैकेंट पड़ो बिकज यू आर नॉट ए प्रेसिडेंट तुम प्रेसिडेंट सीट के कौन कह वैकेंट हुए किए ना किए गोटे था जब प्रेसिडेंट नथे भाइस प्रेसिडेंट नथिले तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस नथिले तुम जे सीनियर मोस्ट थे सीट के वैकेंट हुए पीएम कथा भी देखिए एक्टिंग पीएम भी आसते आम दीथर से जो गुलजारी कौन ता ना से जो देखिए तापर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा तुम स्पीकर था डेप्यूटी स्पीकर था पैनल ऑफ द चेयरपर्सन था देखिए सब विषय राज्यसभा चेयरमैन था जे ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट माने जी वाइस प्रेसिडेंट हम हि इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन एक्स ऑफिसो मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ अच्छे मैंने यहाँ अच्छे मीन्स हूँ एक्स ऑफिसो
तुम जो भाइस प्रेसिडेंट अच्छो ऑटोमेटिकली यू आर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन एंड द पैनल ऑफ द भाइस चेयरपर्सन. स्पीकर केमती हुए इलेक्शन केमती स्पीकर करो इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम एमंगेस्ट इट्स मेंबर डेट फिक्स बाय द प्रेसिडेंट. जो डेट प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे लोकसभा भितर क्या जड़े बाछिकी इलेक्ट करेंगे क्या स्पीकर. टेन्योर होची रिमेनिंग इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा कंटिन्यू टिल द न्यू इलेक्टेड लोकसभा मीट्स. बुझल केबे भी तुम स्पीकर हाउस वैकेंट हुए ना. नेक्स्ट इलेक्शन आसिले जाए ये ओथ देकी जाती. इलेक्शन माने पूरा डिजोल्यूशन हो सारा पर तुम स्पीकर हाउस थाए. स्पीकर डायरेक्ट जाए तुम इलेक्शन सरला माने जो नुआ आसबे ये देकी कार्यभार जी. Removal. Resolution passed by a majority, all then member of the Lok Sabha, effective majority plus 14 days notice is required. Effective majority ताको दरकार plus 14 days रो notice ताको आगे दबो then तमे तुम रिमूवल ऊपर पास करी पारिबो. कारण ए सब जिनस एथि केबे होउनी जहाँ तेरे मेजोरिटी अच्छी थी स्पीकर को कहीं ये करे. अपोजिशन चाहिए भी भोट जदि भी दबे जॉइंट सिटिंग रे भोट देले कोनटा हो. जहाँ तेरे मेजोरिटी अच्छी ताको हाथ रे जिनस हो खास कर एमति केबे छाड़. Powers and the function and the speaker maintain the order and the decorum in the house. Final interpreter of the provision है adjourn the house or suspend the meeting on the absence of the quorum. quorum तमर केते था 1/10 जब न हुए ऑटोमेटिकली स्पीकर तम हाउस को ऊपर दियंती माने adjourn. अच्छा कास्टिंग वोट डजंट वोट इन फास्ट इंस्टेंस बट कास्टिंग वोट माने दियंती जदि टाई हो जाए तर 50-50 भोट आसला ये भोट देवे बट फास्ट इंस्टेंस में भोट दियंती. एंड प्रिसाइड ओवर ए जॉइंट सेटिंग. चेयरमैन तुम जॉइंट सेटिंग रे बसंती ना स्पीकर बसंती. एंड डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट. इट इज फाइनल डिसीजन. मनी बिल मारिक स्पीकर जो जिते जाए साइन मारी ना मनी बिल नुह. स्पीकर जब साइन मारदे दैट इज मनी बिल. डिसीजन इज फाइनल. प्रेसिडेंट भी चाहिए कह ना तुम ये देख कौन सिस्टम मी बिल माने यू हैव टू जब कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट विथहोल्ड करेंगे ना. 14टा स्टेट राटिफाइड कला करद कि विथहोल्ड हो तो से सब जिन प्रेसिडेंट हैव टू गिव असेंट नॉट बिकॉज हिज डिस्क्रिशनरी मीन्स हिज प्रेजर मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट हिज सब. एंड डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ. तापर ensuring the independence of the speaker, security of the tenure can be removed only by resolution passed by effective majority. तुम जितक 368 भितर देखिले आम तुम कौन स्पेशल मेजोरिटी कौन सब मन रख तुम सिंपल मेजोरिटी ना 368 अंडर एटा एग्जाम रे आसला बोधे मन ना बट सिंपल मेजोरिटी तुम ना सब आमेंडमेंट तुम माने ये आमेंडमेंट पावर है तो सेठी तुम सिंपल ये कन्फ्यूज होने 368 अंडर ना. सैलरी आंकर आगु कहते चार्ज जेतिक सब तुम इकोनोमिक्स तुम देख लो चार्ज एक्सपेंडिचर दुईटा थी ना गोटे चार्ज एक्सपेंडिचर जोटा कि तापर भोट खास कर हुए कारण चार्ज एक्सपेंडिचर से जीव ही जीव आगे सैलरी अलाउंस जमी तुम जमी धर आईएस ऑफिस जो आईएस ऑफिसर सब हम तो सेठी जो तुम आसो तुम फंडिंग से डायरेक्ट सेठू आसो तो सेठू तुम चार्ज एक्सपेंडिचर से जीव ही जीव तापर वोटिंग फोटिंग किसी हुए. एंड सैलरी एंड जॉलेंस फिक्सड बाय द पार्लियामेंट ऑन चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को पैसा रहे सब पैसा रहे जी तुम टैक्स फैक्स सब दियो जहाँ जहाँ सब जाए. शुभुच तो सब ना स्पीड हो जाए. अच्छा conduct. His conduct cannot be discussed or criticized in Lok Sabha except on substantive motion. मोशन कौन सब देखिए substantive motion कौन बहुत कट मोशंस भी अच्छी जमी आमर बुलेटिन कट मोशन है कंगारू कट मोशन है सेम सब देखिए कौन सब मोशन अच्छी मोशन चैप्टर. स्पीकर प्रो टेम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and usually a senior most member of newly elected Lok Sabha. Function कौन to admire oath to the new members, to enable the house to elect the new speaker and जो office case to exist when the speaker is elected. जतले speaker elected हो जिवे तापर speaker pro team भांगी जीवो. स्पीकर प्रो टीम एथिपाई थाए तुम प्रेसिडेंट द्वारा गोटे डेट फिक्स हुए तापर स्पीकर टू प्रो टीम से करती गठन तापर यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर नुआ पुराणा नुआ जो नुआ आसी जी
जो इलेक्टेड होइकी तांको भितरु जଣେ स्पीकर पोर्ट टीम बछा जाए सेठू से एडमायर करंती न्यू मेंबर्स को ओथ दियंती एंड एनेबल द हाउस ऑफ इलेक्ट ऑफ न्यू स्पीकर देन ऑफिस इज डिसोल्यूशन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम एमंगेस्ट ऑफ द मेंबर एंड एबे तम डेप्यूटी स्पीकर बोधे के नहांती है and date of the election fixed by the speaker and say not subordinate to the speaker directly responsible to the house माने एटा मन रखियो जे स्पीकर रो सबऑर्डिनेटेड नो डायरेक्ट माने हाउस पई responsible and most usually goes the main opposition party रो कि माने दियंती and privilege automatically becomes the chairman of the parliamentary committees he if appointed as a member जदि डेप्यूटी स्पीकर को पार्लियामेंटारी कमिटीज रे अपॉइंट हे गले सी डायरेक्ट तार चेयरमैन हे जिवे दैट इज कहि परियो दैट थिंग अब प्रिविलेज सेटा तार चेयरमैन का विषय हम बहुत देखलेन कोन देखियो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस रिमूवल चेयरमैन कैन बी ओनली जेम तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल हुए पावर सिमिलर टू द स्पीकर एक्सपेक्ट द किड कैन नॉट हां का पाखरे ओनली पावर था तमर केते आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 2 देखियो तमर फाइनेंस बिल पार्ट 2 सेटा ही तम हाथ थाए कारण हिज होली फॉर द पार्लियामेंट देखियो तो से सब चैप्टर देखियो अच्छे से टाइम रे हला एंड कैन नॉट बी डिसाइड ऑन द मनी बिल डजंट प्रिसाइड ओवर ए जॉइंट सिटिंग करेंटली जगदीप धांखार ये तमर ए चेयरमैन अछि राज्यसभा अच्छा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम एमंगेस्ट इट्स मेंबर act as a chairman when man tang seat vacant thibo जो टाइम रे वीपी इज एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट जेतल से प्रेसिडेंट भाबरे काम करथो डेप्यूटी चेयरमैन आसीबे तांको टाइम को रिजाइन बाय राइटिंग टू द चेयरमैन करेंटली के अछंती हरिवंश नारायण सिंह अब ये तमर अछंती के जगदीप धांकर हला ना ना से तो चेंज ही गोलेनी तू सीपी राधा कृष्णन हेले परा के सितंबर रे ना कोन कोडा डेप्यूटी ए जो ना ना चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट सेप्टेम्बर 12 थ्रू वाइस प्रेसिडेंट सॉरी सितंबर रे चेंज हेतिले मु ताले एटा भूल कोड देखि मार देछि जो ये रो हो कोन तांगा ना थिला सीपी राधा कृष्णन नाम सीपी राधा कृष्णन अच्छा हो होटा चेंज कर दबो मु त पुणी आ पीपीटी बन के चेंज करिया आ सब बनै छैलेनी अच्छा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड जो नुआ नुआ जानछ मते कहियो कोड बोलबा इंटरप्रिटेशन हे जैतियो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम एमंगेस्ट इट्स मेंबर एक्ट्स एज ए मेंबर व्हेन एटा कहली बा सब गला लीडर ऑफ द हाउस होचंते हमर लोकसभा रे प्राइम मिनिस्टर इफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा और द मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय हिम कैबिनेट राज्यसभा रे ए मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द पीएम जाको नॉमिनेटेड करिवे गोटे मिनिस्टर राज्यसभा ताकर हेड लीडर रहंती लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन जाकी सीट नॉट लेस देन 1/10 नथिबो से माने लीडर ऑफ द अपोजिशन हुंती दैट इज स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ताको मिली सैलरी एंड अलाउंस एक्ट ऑफ 1977 रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ताको सैलरी मिलिबो बट को थ्रू रे सैलरी एंड अलाउंस एक्ट ऑफ 1977 एटा तमर आसला ऑफिस ऑफ व्हिप हला एटा कोनोसी तमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशनल लेखा हिनी एटा तमर रूल ऑफ हाउस रे लेखा हिच तमर सॉरी को कॉन्स्टिट्यूशन की रूल ऑफ हाउस की स्टेटस रे तमर लेखा हिनी एटा तमर बेस्ड ऑन द कन्वेक्शन हला appointed by the every political party to control attendance and the behavior of the member से माने सब देखंती ठीक ठाक सब मेंटेन होछ ना नाही जिंस सो कोरम रे चलछ ना नाही सब ठीक ठाक चलछ ना नाही फंक्शन होछ एंश्योर द मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइन एंड वायोलेशन कैन बी लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ शेड्यूल 10 हला माने एटा एमती की माने सब पार्टी रो गोटे गोटे व्हिप थांती व्हिप था बिना व्हिप सब जदि पार्टी लाइन में वोट नदेवे गोटे भल बिल आस धर पब्लिक इम्पोर्टान्स तुम राज्य हेनी काले पैसा खाई थो कि जानला से सब कोरम ठीक ठाक चलती ना नहीं पार्टी लाइन में से सब देखा व्हिप था सेशन ऑफ द पार्लियामेंट फास्ट तुम समनिंग हुई प्रेसिडेंट समन्स इच हाउस प्रति बजेट सेशन 3टा हुए विंटर समर एंड योर बजेट सेशन से तुम प्रति समनिंग प्रेसिडेंट करती माने 8 जन भी करती माने
देन गैप हो मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेक्शन कैन नॉट बी 6 मंथ जहाँ एमाने 2 वर्ष मिसिबे बजेट सेशन फेब्रुआरी रु मे जाए हुए लंगेस्ट तमर हुए मनसून तुम जुलाई सेप्टेम्बर अक्टोबर 3 मास हुए यहाँ तुम 4 मास हुए फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे तुम 2 मास हुए सब सर्टेस्ट विंटर सेशन नवेम्बर और डिसेम्बर तापर जनवरी ही गैप थाए मे जून जून गैप थाए सेप्टेम्बर अक्टोबर गैप थाए मसे मसे गैप पर तुम प्रति 60 दिन जाए बिना इनफर्मेशन रही यू आर डिस्क्वालिफाइड adjournment and the prorogation adjournment suspended the work in a sitting for a specific time লেখা হবো adjournment sign line মানে total back লেখা হয়েছে adjournment terminating a sitting without naming a day for reassemble usually done when session is complete before the prorogation जोटा कि करन तुम प्रेसिडेंट बट तुम adjournment माने दुईटा भितर डिफरेन्स हो गोटे adjournment आउ गोटे adjournment sign line adjournment मीनिंग हो कि तुम जेतिक टाइम लेखा हो कि तुम आम एतिक टाइम मिसिबा adjournment बट जब बिना नोटिस रे ओनली सिस्टम हो गला कह adjournment sign line आम केबे मिसिबा आउ माने सेशन इज एंड खास कर सेशन एंड रे व्यवहृत हुए बट जिनस है कि मीनिंग है कि डेट मेंशन हुए गला adjournment sign line तापर प्रोरोग हुए जे तुम प्रेसिडेंट करते पुणी नेक्स्ट बजेट सेशन में समनिंग हुए प्रेसिडेंट समस्त को समन करते आस तुम सेशन स्टार्ट हम प्रोरोग टर्मिनेट ए सेशन व्हेन द जो हाउस सैला डन बाय द प्रेसिडेंट डजंट अफेक्ट द पेंडिंग बिल बट पेंडिंग नोटिस लास्ट जदि किसी पेंडिंग नोटिस थी लैप्स हो बट कौन बिल ये लैप्स हुए ना मन रखियो यही पॉइंटा कौन ही बिल ये लैप्स हुए बट जदि किसी पेंडिंग नोटिस आगे आसबार अच्छी माने ये हबार अच्छी से सब लैप्स हो जदि प्रोरोगेशन हो जाऊँ तुम तथा पूर्व तुम सब कम सार सेशन एंड है तुम ओके adjournment प्रोरोगेशन कौन जान लो adjournment sign line भी कौन जान लो है डिजोल्यूशन भांगी जीवा ओनली लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू द डिजोल्यूशन राज्यसभा इज परमानेंट राज्यसभा परमानेंट डिजोल्यूशन हुए जमी जानिले प्रति 6 वर्ष से 1/3 मेंबर सॉरी टोटल ये हूँ 6 वर्ष प्रति 2 वर्ष से 1/3 मेंबर बाहर जाते एंड्स द लाइफ ऑफ एक्जिस्टिंग हाउस ए न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन जमी फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रति 5 वर्ष थे हुए एंड डन बाय द प्रेसिडेंट लैप्स ऑफ द बिल को बिल से लैप्स हुए यहाँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जिन मन रखिए एग्जाम आसो कारण ये सब जिन कन्फ्यूजिंग तुम हार्ड लेवल क्वेश्चन मुझाक कह पॉलिटिक्स रे तुम आपको धरी पार वर्ड प्लेस रे खेलीदेवे सी को बिल लैप्स हुए बड़ बड़ लिखिदे लास्ट मीनिंग ये पेंडिंग इन द लोकसभा जोड़ा पेंडिंग थी लोकसभा से लैप्स हो देन पासेस बाय द लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा लोकसभा द्वारा पास हो जाइए बट राज्यसभा पेंडिंग अच्छी सी भी तुम लैप्स हो पेंडिंग इन द राज्यसभा नॉट पास बाय द लोकसभा राज्यसभा पेंडिंग माने राज्यसभा पेंडिंग अच्छी और लोकसभा एजाएँ भी पास है ना से बिल तुम लैप्स हम ना कहीं भी तुम जिनस देखे ना पेंडिंग इन बोथ डिसएग्रीमेंट जो जॉइंट सेटिंग से गुड़ा तुम लैप्स हुए ना चार्टा जाक मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखि जोड़ा लोकसभा पेंडिंग अच्छी कि जोड़ा तुम लोकसभा पास हो राज्यसभा पेंडिंग अच्छी से गुड़ा सब तुम लैप्स हो पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन बोथ जोड़ा तुम डिसएग्रीमेंट जो केस जॉइंट सेटिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जॉइंट सेटिंग केते कहले 6 खंडे 108 नंबर आर्टिकल रे तुम जॉइंट सेटिंग अच्छी से बिल तुम लैप्स हुए ना मनी बिल 110 आउ फाइनेंशियल बजेट तुम बजेट लिखाई आनुआल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखाई 112 मन रख दियो सब कोरम मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू ट्रैक्ट बिजनेस कोरम आर कौन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू ट्रैक्ट द बिजनेस रिक्वायरमेंट 1/3 by 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर इन ईच हाउसेस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा 25 और राज्यसभा 25 सॉरी लोकसभा 55 और राज्यसभा 25 एतिक नहले तुम सेशन हो पार ना एंड इफ नॉट कोरम presiding officer must adjourn sign line no not confusing about that adjourn house or suspended the meeting till a time lame lock session refers to the last session of the existing Lok Sabha after a new election has been elected refers to the last session of existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected lame lock the member who existing Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called lame ducks. Okay,
तुम लैपटॉप सेशन कौन जो नुआ सेशन हवा पूर्वर नुआ लोकसभा इलेक्टेड आसी सॉरी हो सारा पर जो तुम पूर्व लोकसभा थिला ओल्ड लोकसभा थिला सेठी जो सब मेंबर थिले ताको तुम लैम लॉक सेशन बोली कहो जब ताको भितर किसी सेशन हैला प्रति मेंबर जे तुम रिइलेक्ट होगी आसी पारे ना तुम ताको सब लैम लॉक माने लैम डॉग बोली कहल जो मैंने रिइलेक्ट होगी आसी पारे ना तो लैम लॉक पीपीटी तो देदेवे रिविजन कर question hour the first hour of the every parliamentary sitting is called the question hour members ask question and minister give answer कौन कहली सबू जंग अच्छा प्राइवेट बिल कौन सबू बिल एक्चुअली बिल हो प्राइवेट बिल जदि प्राइवेट रो बिल आसे जोटा कि तुम प्रति फ्राइडे शुणा हुए से प्राइवेट बिल कौन अरे प्राइवेट So बिल got a bill introduced by a private member, mane J who is not a member of नहीं सुनो private members bill. प्राइवेट मेंबर माने होची जो माने मिनिस्टर नुह अपोजिशन खाली नुह जो माने मिनिस्टर नुहंती जेति कैबिनेट मिनिस्टर रही गले ता बड़ केतरा पोर्टफोलियो मिनिस्टर सब रही गले तांको छाड़ी की मिनिस्ट्री छाड़ी के जो बिल आसुची ताको प्राइवेट बिल बोली कहै छै हला खाली अपोजिशन नुह फर्स्ट हाउस ऑफ द एवरी पार्लियामेंट छाड़ जानल तापर फर्स्ट हाउस ऑफ द एवरी पार्लियामेंट्री सेशन तमरा क्वेश्चन आंसर आवर ताको कहै जाय एंड मेंबर्स आस्क क्वेश्चन टू द मिनिस्टर एंड ही गिव आंसर्स तीनटा टाइप क्वेश्चन था को वर्ष आर वर्ष एग्जाम आसला होते स्टार्ट क्वेश्चन कौन रिक्वायर्ड दी ओरल आंसर सप्लीमेंटारी क्वेश्चन कैन फॉलोड आपको ग्रीन पेपर रे लिखा जाए छाड़ स्टार्ट क्वेश्चन ए जिनस आपको खाली ग्रीन व्हाइट पिंक स्टार अनस्टार शॉर्ट नोटिस ग्रीन व्हाइट पिंक स्टार अनस्टार शॉर्ट नोटिस स्टार नोटिस माने सेठी तुम ओनली ओरल आंसर दिया जीवो सप्लीमेंटारी क्वेश्चन भी पचारि हम अनआंसर्ड क्वेश्चन होची अनस्टार क्वेश्चन होची रिक्वायर्ड रिटन आंसर एटा ही तुम क्वेश्चन आसला ये उल्टा कर देथिला कि तुम तीनटा मत ठीक थिला से जो ये आर वर्ष एग्जाम ना कोतोटा आसला छाड़ इट रिक्वायर्ड द रिटन आंसर नो सप्लीमेंटारीज एंड शॉर्ट नोटिस होची नोटिस और लेस देन 10 डेज माने नोटिस ऑफ द लेस देन 10 डेज तुम जो स्टार शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आनिया को करिया पड़िबो तापर तुम ओरल आंसर दे पारिबो पाई पारिबो स्टार और अनस्टार भितर मन रखिबो स्टार क्वेश्चन ने तुमरो कोनोसी भी कौन ओरल आंसर दि जाए अनस्टार रिटन लिखा जाए अनस्टार रिटन स्टार ओरल आ तुम अनस्टार को सप्लीमेंटारी क्वेश्चन पचरा जाए ना स्टार सप्लीमेंटारी क्वेश्चन पचरा जाए जोटा हुए ओरल अनस्टार लिखा से कौन सप्लीमेंटारी क्वेश्चन पचरा जाए ना ये तुम फास्ट आवर गला तापर 0 आवर स्टार्ट है यहाँ जो इंडिया इनोवेशन सेमती कौन ना कनसेप्ट पार्लियामेंटारी सिस्टम आम कौन कहले आम होती वेस्टर्न मिनिस्ट्रियल मॉडल रू धरिक यूके फिकेट सेमती 0 आवर नामक जिनस ना बट आमर अच्छे इंडियन इनोवेशन नॉट मेंशन इन रूल ऑफ द प्रोसीजर एक्जिस्टिंग सिंस 1962 इट वाज आवर इंडियन इनोवेशन ओनली टाइमिंग होची स्टार्ट्स इमीडिएट आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द एड इज टेकन अप अप्रोक्सीमेटली 12 PM जाए प्रपोज कौन मेंबर कैन राइज मैटर ऑफ द पब्लिक इंपोर्टेंस विदर प्रायर नोटिस रे एठी जिनस माने जतिक पब्लिक मैटर अच्छे आपको कंसर्न करि पारिबे जेमती तुम क्वेश्चन आंसर आवर रे मु कहली स्टार अनस्टार शॉर्ट नोटिस से सब क्वेश्चन पचला पूर्व 10 दिन तुमको आगरू करिया पड़ो बट तुम एठी 0 आवर रे क्वेश्चन पचला पूर्व एठी तुम कौन भी शॉर्ट नोटिस दवा आवश्यकता ना पब्लिक इंपोर्टेंस जो थी तुम एटलिस्ट से जिनस कर तीनटा जिनस भलसे मन रख 0 आवर क्वेश्चन आंसर आवर आ को गुड़ाक जो लाप्स हुए ना डिजोल्यूशन हो सारा पर ये सब क्वेश्चन ट्रैक हुए है मोशंस नो डिजोल्यूशन ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंपोर्टेंस कैन बी प्लेस टेक ऑन ए मोशन जो तुम 0 आवर हुए से केतरा मोशन भी यूज हम with the consent of the presiding officer that is important substantive motion self contained independent proposal dealing with very important matter like impeachment of the president तो तुम substantive motion को आनी पारिबो मोशन कौन इट इज ता द्वारा गोटे क्रिएट हुए माने किए गोटे दियंती कि मु मोशन लगे तुम देखियो जो टाइम तुम लोकसभा टीवी देखुन मुझे कहले तुम बुझीपारनि के देखिए से लोकसभा टीवी केमती सेठी हुए सब सिस्टम 0 क्वेश्चन आंसर जावर केमती हाँ आउ येस एंड नो रे बिल पास हुए टे प्रैक्टिकली देखियो हला सब्सटेंटिव मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन जदि को माने मोशन चलेले तुम सब्स्टिट्यूशन ने मोशन को पास करि पारिबो सब्सिडियरी डिपेंड्स अपॉन द रिलेटेड टू अनदर मोशन लाइक अमेंडमेंट
आमेंडमेंट आनिबार अच्छी तुमको सब्सिडारी मोशन को माने आनिया पड़ो है माने जो टाइम रे तमर कौन पब्लिक इंपोर्टेंस थिला जो टाइम रे जते सारा अमेंडमेंट सब हमर आसी जाय 107 जाय 8 जाय एटा तमर अमेंडमेंट बिल केते एबे तमर गोटे नुआ बिल आस्तिला कोन 130 नंबर अमेंडमेंट बिल पास हेनी बट गोटे बिल आसी से बिल कोन लिखा है तमर से बिल तमर लिखा है कि तमर जो धर जो मानक 2 मास जो मिनिस्टर की आपको 2 मास जेल हेची कि जहाँ को 2 मास जेल हबो तांको तमे डिस्क्वालिफाइड पारिबो कि से माने आगे भी इलेक्शन लड़ी पारिबे नाही सेटा केते घंटा एक्ट हबट बिल गोटे आस्तिला मु देखली को ये गोटे को स्लाइड रे बिल गोटे एमती आसी हला बिल एक्ट हला वाला एउडा एमती सब बिल को हमर एक्ट होई 130 नंबर बिल हमर चल जे बट एक्ट नंबर केते अमेंडमेंट नंबर हमर केते लेटेस्ट चल जे 107 ना 108 अब अमेंडमेंट केतेटा हेई साइलेनी हमर देखियो जाई कहि 3 थर 4 थर कहि साइलेनी क्लोजर मोशन a motion moved by a member to cut short on a debate of the matter means कौन कौन सब अच्छी फास्ट तुम्हारा सिंपल क्लोजर मैटर सफिशिएंटली डिस्कस्ड एंड पुट टू भोट सफिशिएंटली डिस्कस होगा एवं ताको तुम भोट कर सेठी तुम्हारा सिंपल क्लोजर मोशन यूज हुए क्लोजर बाय द कंपार्टमेंट क्लोजर ग्रुप्ड इनटू कंपार्टमेंट एंड डिबेटेड माने ताको गोटे गोटे ब्लॉक रे भांगी देबे एटा 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 सेठी डिबेट हवा स्टार्ट हबो सेमती जति करिया को चाहूछो देन तमरो क्लोजर मोशन बाय द कंपार्टमेंट देन कंगारू क्लोजर मोशन कंगारू कंडी डम डम सब इंपोर्टेंट क्लॉज गुड़ा तुम डिबेट कर बाकी अननेसेसरी पार्ट छाड़ एट बोर्ड लगा तुम से लगे कंगारू क्लोजर मोशन देन बुलेटिन मोशन बुलेटिन कौन से बुलेटिन द वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े ना बुलेटिन हो तुम फ्रेंच रिवोल्यूशन कथा तुम पढ़ो ना एट द टाइम ऑफ 1789 पाखापाखि है ये तुम बुलेटिन क्लोजर गोटे पार्टी नहीं आसाला से पावर थी तुम से 1990 सरी 1794 5 पाखापाखि तापर तुम नेपोलियन आसीगले 1803 टू 1814 जाए बट तुम ये जो से गोटे बाहर करते मेसीन से जो देखी बेकटा को तुम नहीं रख से गोटे थी प्लेट भाया काटिदेले कटिज बुलेटिन बोली कहते So bulletin closure motion undiscussed clause are put out to vote along with discussion. छाड़ काट डिस्कस पठाओ इट इज कॉमन इन बजेट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बजेट सेशन में तुम प्राय बुलेटिन क्लोजर मोशन ही यूज हुए अनडिस्कस पार्ट गुड़ा छाड़ी दिखती तुम भोट को नहीं आसता क्लोजर मोशन ये सब मोशन को देखिए टे कंगारू मोशन तो बुझीज बुलेटिन मोशन तो बुझीज क्लोजर बाय द कंपार्टमेंट देखिए जापर कंपार्टमेंट लिखाई सिंपल क्लोजर मैटर सफिशिएंटली डिस्कस पुट टू वोट सिंपल क्लोजर देन प्रिविलेज मोशन कंसर्न विथ द ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंटरी प्रिविलेज बाय मिनिस्टर माने कौन मूव्ड बाय मेंबर when he feels a minister has committed a breach of the privilege of the house by holding facts or giving wrong facts propose to closer and to concerned minister privilege motion तमें जदि सब मिनिस्टर को किसी किसी प्रिविलेज दिया जाता है को भाया प्रिविलेज जमी मुझे कहली आम जो आर्टिकल 19A वाइज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करुँच तार स्कोप टू तुम मिनिस्टर को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्कोप हाउस रे बहुत ब्रॉड होता है एंड दैट इज देयर प्रिविलेजेस से टाइप प्रिविलेज जो तुम किसी रॉन्ग इनफॉरमेशन तुम जिनस को तुम मिसयूज कल यू हैव टू माने तुम से जिनस को धरा है इट प्रपोज टू क्लोजर कंसर्न द मिनिस्टर मिनिस्टर भी जानू जिनस कौन हो एंड अच्छा छाड़ then the calling attention motion introduced in the parliament by the member to call attention of a minister to matter of the public urgent जोटा पब्लिक अर्जेंट थी धर जानिले कौटी कौन गोटे तुम भूमिकंप आसूँ कि बात्या आसूँ कि तुम पब्लिक अर्जेंट कि तुम दंगा होगा कि लोक मैंने ये हड़ताल कर मास अमाउंटर तो से सब जिन तुम कॉलिंग अटेंशन मोशन मिनिस्टर सिक टू मेक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इंडियन इनोवेशन सिंस 1954 मेंशन इन रूल ऑफ द प्रोसीजर एटा मेंशन है इंडियन इनोवेशन टू 1954 कॉलिंग अटेंशन मेंशन मीन्स जदि पब्लिक एजेंसी एमती किसी बिल आनियार अच्छी
ବିଲ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବିଲ୍ ଆଣିକି ମାନେ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଏ ପାଇଁ ଯେମିତି ତୁମର କେଉଁ ବିଲ୍ ଧର ବିଲ୍ ନମ୍ବର କହିବି ତୁମେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଯିଏ ଭାବିପାର ତୁମର ଯେମିତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ହେଲା ଧର ରାମ ମନ୍ଦିର କଥା ବି ତୁମେ ଧରି ପାରିବ ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସେସବୁ ନୁହଁ ବଟ୍ ଯେତେ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତୁମର ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଥିବ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଫାର୍ମ ଲ ତୁମର ଆସିଥିଲା ତାପରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଅବଶ୍ୟ ବଟ୍ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲିଂ ଆଟେନସନ୍ ମୋସନରେ ଆଣିପାରିବ ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିବ ହେଲା Then adjournment motion introduced in the parliament to draw attention to a definite matter of the urgent public importance. Then needs the support of the 50 members ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏତିକି ପବ୍ଲିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ବଟ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କଲିଂ ଆଟେନସନ୍ ମୋସନ୍ ଲାଗୁଛ ସେଠି ତୁମର କିଛି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ନଥିଲା ନିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି 50 members to be admitted and interrupt normal business extraordinary device and available only in the Lok Sabha এইটা important chapter it is don't available for the Rajya Sabha adjournment motion is only for the Lok Sabha exclusive power of the Lok Sabha of adjunctive motion and it involves the elements of the censure against government resolution must last for last 2.5 hours ତମର resolution must last for 2.5 hours ତାପରେ ତମର ଯାହା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ ବଟ୍ ତମର adjournment motion ଫାଷ୍ଟ ତମର ପବ୍ଲିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଅଣାଯାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫୁଲି ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତମର ଲୋକସଭାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପାୱାର ତୁମେ କହିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିଡ୍ 50 members of admitted before the adjournment motion not like the ତମର କ'ଣ କଲିଂ ଆଟେନସନ୍ motion ଦେନ୍ ତମର नो କନଫିଡେନ୍ସ motion article 75 ତମକୁ କହୁଛି no confidence motion article 75 says council of minister is collectively responsible to Lok Sabha लेके बोर्ड ने जोनरा कहते बुड़ी भी नहीं बुड़ी से वाला जिंस can be moved only in the Lok Sabha need support of the 50 members जेमती सेठी थिला adjournment रे एठी भी तमरो 50 members दरकार doesn't need state of reason for the adoption किछि भी तम रीजन लिखवार आवश्यकता नहीं कोन पे तमे ये करतो से करतो एठी no reason is written and if passed the government must resign ଯଦି এটা ପାସ୍ ହେଇଗଲା then government have to resign and moved against the entire council of minister not an individual that is called as the collective responsibility the part of the collective responsibility but the no confidence motion ଯଦି ହାଉସ୍ ରେ ପାରୁନି ତ ଜଣାଯିବ କି ତମ ହାଉସ୍ ଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିପାରୁନି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ ଦେଶରେ ତମେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବ ନା ଯଦି ତମେ ନର୍ମାଲ नो କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନକୁ ପାସ୍ କରିପାରୁନ ଦେନ୍ ତମର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି देन से जो तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन जदि किए पास कला 50टा मेंबर एडमिट हवा दरकार ओनली ही लोकसभा दैट इज ओनली ही एक्सक्लूसिव टू द लोकसभा एंड 75 आर्टिकल देख लो आई पास्ट गवर्नमेंट हैव मस्ट टू रिजाइन एंड मूव अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट एन इंडिविजुअल ना ना एटा आउथरे टिके कोन तो कोन कहिले टिके डिटेल रे अच्छा नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन तुम जो टाइम रे धर मु गोटे नो कॉन्फिडेंस मोशन मो फ्लोर रे मो लोकसभा आने को चाहूँ एटा ओनली लोकसभा हो राज्यसभा होनी है तो मुझे लोकसभा बसिली मत बिलटा आनबार अच्छे यही मोशनटा को आनबार अच्छे तो से मोशनटा आने पूर्वर मत 50 जनकर दरकार सपोर्ट कि मुझे मोशनटा को आणुची बोली जदि मोशनटा आसीगला बिल उपरे आसे मोशन उपरे भोट है जदि से भोट तार माने कौन ए बिलटा जदि पास हो पारला नहीं तो एठी तमर गवर्नमेंट को रिजाइन करिया को पड़िबो हला माने एठी तो देख आ भितर क्वेश्चन केमती आसे सेंसर मोशन जिनस तो तुम बुझे दो पूरा देख सेंसर मोशन मेन जिनस हला रीजन मस्ट बी स्टेटेड हला एगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप एटा तुम इंडिविजुअल मिनिस्टर को पाखरे करि पारिबो किबा ग्रुप को पाखरे कोटा तुम सेंसर मोशन इफ पास्ट गवर्नमेंट नॉट रिजाइन बट जब नो कॉन्फिडेंस मोशन तुम पास हो जाऊँगी गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन गोटे सेंसर मोशन आसे जोटा तुम इंडिविजुअल ऊपर आसे कि ग्रुप ऊपर बट नो कॉन्फिडेंस मोशनटा एंटायर ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नारे आसे जदि से बिलटा को से मोशनटा को मुझे आनिली 50 जन सहमति होगा मो बिलटा को नहीं आसीगली मोशनटा को तो जदि 545 तुम जी तुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छा तुम फ्लोर सब जी भी अच्छा जदि से बिलटा तुम पास हो पारुनी तो गवर्नमेंट तुम संभाल केमती माने तुम नॉर्मल जदि गोटे बिल को पास कर पारुन दैट इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन से गवर्नमेंट रो कॉन्फिडेंस नहीं कि आगु को से जिनस संभाली पारिबो बोली तुम धर आज गोटे बिल आसीबो 545 लोक तुम धर माने तुम पार्टी अच्छा से 100 वोट भी आनी पारलेनी
ଯଦି 100 ଭୋଟ୍ ଆଣିପାରିଲେନି ତମର ଏଇ ଯେଉଁ नो କନଫିଡେନ୍ସରେ ଆଗକୁ ଧର ଫାର୍ମ ଲ ଆସିଲା କି ତମର ଏମିତିଆ କିଛି ଲ ଫ ଆସିଲା ତ ସେ ଲରେ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାସ୍ କରିବ ସବୁଠି ତ ଅପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ କୌଣସି ମେଜରିଟି ନାହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପସନାରୀ ୟୁଜ୍ କରିକି ବାଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତମର ରିଇଲେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ତମର ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ତମର ସେଇ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ହେଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଟୁ ରିଜାଇନ୍ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଜାଇନ୍ କରିବ ତମର ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ କି ତମର ସେଣ୍ଟର ହଉ ମାନେ ସରି ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛି ମାନେ ତମର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ରିଜାଇନ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟ ଯଦି नो କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ପାସ୍ ହେଉନି ଯେମିତି ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଥାଏ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆସେ ସେଟା ବି ଯଦି ପାସ୍ ନ ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମର ବ୍ୟାନ୍ ହେବ କାରଣ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାସ୍ କରିପାରୁନ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଲୋକସଭା ବ୍ୟାନ୍ ହୁଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ହିଁ ଆସେ ସେନ୍ସର ମୋସନ୍ नो କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥାଏ ରିଜନ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇଟା ହିଁ ତମ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ नो कॉन्फिडेंस मोशन ने कौन सी भी रीजन निडेड दरकार नहीं मु पारिबी 50टा लोक साथ देवा दरकार जदि पास होनी तमें जाओ तापर सेंसर मोशन एटा बिल नुह ना मोशनटा तुम जब पास कर माने एटा नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एगेंस्ट आसी जाए सेटा जदि सेतिकी जिनस सेठी आडन हेई न पारला सेटा जदि पास न होला ता माने गवर्नमेंट रो मेजॉरिटी नहीं ना तो नो कॉन्फिडेंस मोशनटा जदि पास होनी ता माने कौन मेजॉरिटी नहीं सेटा जदि पास होनी तुम ये करो डिटेल करो जिन मोशन ऑफ थैंक्स था एंड पास गवर्नमेंट नीड नॉट टू रिजाइन इन सेंसर मोशन এটা তোমার মোশন অফ থ্যাঙ্কস অ্যাড্রেস টু দি প্রেসিডেন্টস অ্যাড্রেস ফার্স্ট সেশন আফটার দি জেনারেল ইলেকশন অ্যান্ড ফার্স্ট সেশন অফ দি ফিজিক্যাল ইয়ার ডিসকাস ইন দি বোথ হাউস must be passed in the house otherwise it amount to be defeat of the government आपको गवर्नमेंट रो डिफिट बोली माना जाए जदि एटा पास होनी एंड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स हला तमर जो टाइम रे पीएम मोशन ऑफ थैंक्स रे भी जदि ये होनी एटा गवर्नमेंट रो डिफिट माना जीवो माने साइन मोशन ऑफ थैंक्स पास होनी माने तम गवर्नमेंट के संभाळियो बट तमर सेंसर मोशन ने तमर ए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दे पास नव टोटल नुआ हो रिजाइन दो ऑर्डिनरी बिल प्रोसीजर तुम कौन केमती रोचे प्रोसीजर तुम एटा सब केमती बिल एक्ट हुए जो पढ़ी बिल के कौड़ा एक्ट हुए से सब जिन लिखाई फास्ट रीडिंग हुए इंट्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन इन दी गैजेट ऑफ इंडिया सब देखी जो टाइम तुम सब जॉब पाइब जो तुम हो रिसर्च एग्जाम हो कि सब एग्जाम हो तुम गैजेट ऑफ इंडिया ना बाहर है से गैजेट ऑफ इंडिया से कहूनी पढ़ी से मुझे ही गैजेट ऑफ इंडिया एंड इंट्रोड्यूस एंड पब्लिकेशन इन दी गैजेट ऑफ इंडिया ये सब बिल तुम जहाँ भी इंट्रोड्यूस ये हुए सब गैजेट ऑफ इंडिया रे लिखा हम सेकेंड रे रीडिंग हुए माने फास्ट रीडिंग रे सेकेंड रीडिंग रे डिटेल स्क्रूटिनी हुए कमिटी स्टेज क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन आफ्टर दी अमेंडमेंट कमिटी माने को कमिटी कथा कहूँ तुम जो पार्लियामेंट्री कमिटीज था जो मैंने मिनिस्टर न था भितर जो मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मैंने लोकसभा 45 ना सब तो कैबिनेट मिनिस्टर नु तुम कहली 15% बाकी गुड़ा सब पार्लियामेंट्री कमिटीज रे था पार्लियामेंट्री कमिटीज रे जो रीडिंग हुए ये सब क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करती इंक्लूडिंग दी अमेंडमेंट्स थर्ड रीडिंग रे वोटिंग हुए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एज ए होल बिल इन द सेकेंड हाउस पासेस रिजेक्ट और रिटर्न्स डेडलॉक जमी हुए तुम जानते हो जब पास है रहीगला कि सेठू पास रही कि दी जन भर बुझाणा हो पारे तो से बिल सब तुम लैप्स हो तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे को जॉइंट सेटिंग हुए ना दी जन बोथ हाउसेस रु अलग अलग ताकू करेंगे पासेस नरे से पास हम ना है जॉइंट सेटिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 104 used to resolve deadlocks or ordinary or finance bill type 1 not type 2 type 2 is for exclusively to the Rajya Sabha but type 1 is for the finance bill or ordinary bill जो ऑर्डिनरी बिल सब रहा जोटा कि आर्टिकल 368 अंडर जाऊनी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 शायद तुम जो ये बिल ऑर्डिनरी बिल बट समन बाय दी प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट प्रिसाइड बाय द स्पीकर एब्सेंस डेप्यूटी स्पीकर दैन डेप्यूटी चेयरमैन ये वाइस प्रेसिडेंट बसते ना quorum होची 1/10 and majority simple majority of the total member present and voting simple majority जानते हो total majority and not applicable for money bill or constitutional amendment bill money bill और constitutional amendment bill ले एवढा applicable नुह एटा part of thing कोकोड़ा नुह देखियो हूँ तो सब जानती है कोकोड़ा नुह सेवड़ा देखियो
मनी बिल जमी देखिले आम आर्टिकल 110 तुम लिखा जाए मनी बिल विषय डील्स ओनली विथ द इम्पोजिशन एंड abolition of taxes borrowing of the money by government custody of the consolidated fund and etc तुम जेतिक सब बोरोइंग थाए गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अच्छा तक बोरोइंग तुम 1992 जो तुम आसला एलपीजी रिफॉर्म तुम पढ़ल लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन थ्रू आईएमएफ पाखु आम $3 ट्रिलियन लोन धरिक आसते जो फास्ट आस रहा कौटी तुम यही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे इम्पोजिशन abolition ऑफ द टैक्सेस तुम जी सब टैक्सेस आसूँ सब तुम यही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे ही रोचे सर्टिफिकेट स्पीकर डिसाइड इफ ए बिल इज मनी बिल हिज डिसीजन इज फाइनल साइन होगा माने डिसीजन इज फाइनल प्रोसीजर इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट कर प्रायर रिकमेंडेशन दरकार एठू मनी बिल प्रेसिडेंट कर प्रायर रिकमेंडेशन दरकार एंड इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड कैन ओनली रिकमेंड विद इन 14 days ओनली तुमको रिकमेंड दे पार कि तुम चेंज करतु प्लीज ये जिन ये कैन नॉट बी सी मानव कि ना दैट इज हिज डिस्क्रिशनरी लोकसभा से जो कौन मनी बिल इज एक्सक्लूसिवली फॉर द लोकसभा राज्यसभा ओनली रिकमेंडेशन दिए कि एमती होता सेमती होता लोकसभा मानव कि ना डिपेंड कर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय हिम कि नॉट डिसाइड बाय हिम ओके देन फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 जमी तुमको कही फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 कौन टाइप 1 टा हूँ तुम 117 नंबर क्लास ए जो मनी बिल जो कहले नहीं सेटा कोन मनी रिलेटेड किछि थिबो माने जेमति के कंसोलिडेटेड फंड रो किछि पैसा उठै परथिबो सेही टॉपिक रे मनी बिल तुम मनी बिल का जान ना माने मुझे डाउट रे अछि कोन जानथि अबे तुमर जेतिक भी गोटे इंडिया रे माने तुम देख जो टाइम रे बजेट और मनी बिल भितर डिफरेंस कौन बजेट रे तो से एक्सपेंडिचर आ रिसीव रो एनुअल स्टेटमेंट बाहर कर देते तुमर जेतिक सब तुमको पूरा पेयर एक्ट देखो कौन पढ़ल कि मु पढ़िया तो देखनी तो पढ़िया दीजिए मनी बिल बुझे तुम छाड़ এটা দেখিল मनी बिल वर्सेस बजेट पीआर टा कहीं ये देखिले मु कलेक्शन केते पीपीटी ऐड कर मनी बिल डील्स विथ दिस बेसिकली विथ इश्यूज लाइक द टैक्सेशन borrowing and spending from the consolidated funds of the India and is the type of the finance bill that only be introduced only Lok Sabha but budget is the budget or annual financial statement is a documented that outline the government's entire financial plan for a year and is enforced through a passage of a finance bill which is a type of money bill and appropriation bill is essentially the budget is entirely planned while money bill is a specific legislative tool used to enact particularly its revenue rising component कौन बुझला भीतर मनी बिल भीतर कह पढ़ी देली तू कह माने मुझे जानते अप्रोप्रिएशन बिल माने तो से जो गवर्नमेंट ये करिवो कि कंसोलिडेटेड फंड रो उठेवा पई पैसा आ फाइनेंस बिल माने जोटा टैक्स प्रपोजल हेरिका जो देउथबो सेटा को फाइनेंस बिल कहबो बोली मोटा बजट रे पढ़थिली बाकी मनी बिल गोटे जिंस कोन मु जानि पे मनी बिल इज ए टाइप ऑफ फाइनेंस बिल
The money bill is specially deals with ମାନେ issues like କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ବିଲ୍ ଆଉ ମନି ବିଲ୍, ଯୋଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ବିଲ୍ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ମନି ବିଲ୍ ବୋଲି। हाँ तुमर जेतिक फाइनेंस बिल इज ए टाइप ऑफ मनी बिल ना तुम ଆଉ स्पीकर ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସन ବିଲ୍ अप्रोप्रिएशन बिल होगा और अप्रोप्रिएशन भी जो ସେଇଠି ବି ତ ମନିର ଇଏ ହଉଛି ନା, ସେ ତା ମାନେ ତ ସେ ମାନେ ୱିଥଡ୍ର ଅଫ ମନି फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अप्रोप्रिएशन बिल का is setting money aside for a specific propose or funding किसी टाइम पे एटा हुए जिते जाए तुम बजेट रो पैसा उठिनी सेते जाए तुम एप्रोप्रिएशन बिल है कारण सांगे सांग तुम सब पैसा आलोकेशन हो जीवन ना दिस बिल इज ए की पार्ट ऑफ द बजेट प्रोसेस एट इज रिक्वायर्ड द लेजिस्लेटिव अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द नेशनल ट्रेजरर टू द फंड ऑफ द ऑपरेशन जिते जाए तुम फाइनान्स बिल थर बजेट तुम लागू हो गला सांगे सांगे तुम पैसा उठे आनी पारनि तो से जाए तुम ये अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा तुम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया रू पैसा उठे थुप अनलाइक ए फाइनान्स बिल व्हिच डील्स विथ द राइजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू द अप्रोप्रिएशन बिल इज सोली फोकस्ड ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तुम अप्रोप्रिएशन बिलटा ओनली एक्सपेंडिचर ही लगे जमी कौन कहली थर तुम बजेट पूरा 1 ईयर प्लानिंग हो गला यही आम सब खर्च कर आगू यही आम एक्सपेंडिचर हबार अच्छे फोकस है बट सब मिनिस्ट्री एबे ताको काम स्टार्ट कला पूर्व ये सब जिन आक्टिवेट हेनी मैंने सांगे सांगे से पैसा उठे आनी पारे तेणु से अप्रोप्रिएशन बिल तुम हुए पास अप्रोप्रिएशन बिल तुम टैक्स फैक्स ये सब जिन नुह अप्रोप्रिएशन बिल इज ओनली फॉर द थिंग तुम एक्सपेंडिचर धर मोर गोटे प्रोजेक्ट अच्छी ना तुम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया गोटे प्रोजेक्ट से पैसा उठा चाहूँगी बजेट बिल पास हो जाऊँगी बट से सांगे सांगे कम करने चाहूँगी एक्सपेंडिचर अप्रोप्रिएशन बिल पास करके जो बजेट आलोकेशन होती से पैसा उठेकी आनी पार काम लगे पार बट फाइनान्स बिल तार सब जिन लिखा होता है मनी बिल इज ए टाइप ऑफ फाइनान्स बिल बट जिन सब जिन लिखा होता है तुम के जिन कौट आसूसी पैसा ये तुम बोरोइंग्स अप्रोप्रिएशन बिल किसी तुम बोरोइंग्स लिखा हुए ना तुम जो मैंने ओनली तुम एक्सपेंडिचर बोरोइंग्स तुम कौट लिखा जाए तुम जी रोचे फाइनान्स बिल सॉरी कौन बजेट रे गोटे एक्चुअली जो आनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बाहर बजेट तो लिखा है से आनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे कौन था एक्चुअली मैंने देखी तो कौन से कही इकोनॉमिक्स रे से कौन था से एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट रो स्टेटमेंट था। अच्छा एक्सपेंडिचर रिसीप्ट रो स्टेटमेंट किए ताको लिखे बसी माने ये सब जिन किए देखे से फाइनेंस मिनिस्टर कहली पा ऑडिटिंग पे हमर जन अछंती ना कि ऑडिट करे सब जिन केडे हिसाब पत्र रखुथो ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 149 तमर क्याग द कोन करियो बसी क्याग सब देखिबो माने लेखा ता परे पार्लियामेंट्री कमिटीज मन को स्क्रूटिनाइजेशन पे जाए का रिपोर्ट जाए सेटू क्याग रो रिपोर्ट जाए क्याग जदी ता रिपोर्ट न दो क्याग जदी सब क्याग इज इंडिपेंडेंट बॉडी बट तो कहि तो ता छाड़ बट इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी क्याग ये सब जिन आसुची से सब हिसाब पत्र तम क्याग रखुछला तापर ये सीना उठिकी ठिया पढ़ती ताकर कौन प्लानिंग हम प्लानिंग कहे कि कौन प्लानिंग हम कौटी खर्च हम केते खर्च हम बट जो खर्चटा हो फाइनान्स मिनिस्टर बस लिखि रखी दियो सी सब क्याग लिखि रखे है दैट इज अप्रोप्रिएशन बिल इट इज नॉट फॉर एक्सपेंडिचर है मनी बिल कौन माने भल से क्लीयर है तो मनी बिल भी तुम टाइप ऑफ ए फाइनान्स बिल है जोटा कि तुम स्पीकर सिग्नेचर बाजिला माने तुम जी मनी बिल आसे देख न तुम जो कौन बुझे मनी बिल द्वारा तुम जेतिक जाक जिनस आसूला पैसा आसूची कौटू कौन आसूची कौन सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो इंडिया स्पेंडिंग होची से सब जिन मनी बिल लिखा जाए बट आनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा तुम कौच बजेट से तुम खर्च लिखा जाए केते आइला केते खर्च होला आगु कौटू खर्च हो प्लानिंग कौन कौट कौन सब सिस्टम अच्छी से तुम बजेट आसला गोटे बजेट आस गोटे प्रिवियस जो आसे ए सब आम होता के फुलफिल है नुआ नुआ जमी तुम ए लागू है कौन स्लैब गुड़ा सब जो लागू हो कि तुम 5% जाए टैक्स ना कि टैक्स अच्छी तुम 7 लाख जाए 10 लाख जाए 12 लाख जाए ये सब स्लैब जो हो तुम जो जिन सब लगुच तुम कौ जिन सब है टैक्सेसन टैक्सेसन माने तुम जीएसटी टैक्स जो दौच ये जो सब तुम जो आसला तुम जो प्राइस फाइस सब बढ़ला तुम देख थंडा प्राइस ये होगा प्राइस ये होगा से कौट सब आस बिलटा जो पास हम ना नहीं से बिलटा कौन कहते
ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନି ବିଲ୍ କଣ ରୂପରେ କହିଲେ ପକାଉଛି। ଆଉ ଥରେ କଣ? ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଏବେ ଧର ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟି ଆମର ହେଲା ହେଲା, ତ ଜିଏସ୍ଟିର ସବୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଫିକ୍ସ କଲେ ହେଲା, ଜିଏସ୍ଟିର ଯେତିକି ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମର ଫିକ୍ସ ହେଲା କି ଏତିକି ସବୁ ରହିବ, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ରହିବ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିଥିବେ ନା ନାହିଁ, ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ କି ଯେଉଁ ବି ବିଲ୍ ହଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆସିଥିବ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ ନା, ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ। ଜିଏସ୍ଟି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଯିବ କି ହଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ତ ସେ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଥିରେ ହଁ ସେଟା ପାସ୍ କରିବେ, ମନି ବିଲ୍ ରୂପରେ ହିଁ ପାସ୍ କରିବେ। ବଜେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ ନୁହଁ, ବଜେଟ୍ଟା ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାର କରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବୁଝୁଛ ତ ଜିନିଷ, କେତେ ସବୁ ସ୍ଲାବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତୁମର କେତେ ଲକ୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛ, ସେଟା ହେଲା ତୁମର ବଜେଟ୍। ବଟ୍ ବିଲ୍ ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆସେ, ଯେମିତି ତୁମର ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଏଇଟା ଥିଲା କି ତୁମର ନର୍ମାଲ୍ ଫାର୍ମ ଲକୁ ମନି ବିଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ପୁରେଇକି ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଏମିତି ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ମାନେ ତାପରେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇନି ସେ ଫାର୍ମ ଲଜ୍ ଉପରେ କି ଯାହା ବି ସବୁ ଏତେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଲା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ଯାହା ଏତେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇନି ହେଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ତୁମର ମାନେ ମନି ବିଲ୍, ବଟ୍ ବଜେଟ୍ରେ ତୁମର ବଜେଟ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ପାସ୍ ହେବ କି, ବଜେଟ୍ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ଦେବାକୁ, ତୁମର ଯାହା ହିସାବ ପତ୍ର ହେଇଛି ତୁମ କ୍ୟାଗ୍ ହିସାବ ରଖିଥିବ ନା ସବୁ ଭାଇ, ତ କ୍ୟାଗ୍ ହିସାବ ରଖିଥିବ ସିନା ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ବଜେଟ୍ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ସେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଏ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଡ଼ିଟିଂ ହିସାବ କିତାବ ସିଏ ଠିକ୍ କଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର କ୍ୟାଗ୍ର କାମ, କ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଦେଖିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ତୁମର ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ପ୍ରତି ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ପଢ଼ନ୍ତି ବଜେଟ୍ ତୁମର, ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର 112 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍। ବଟ୍ ମନି ବିଲ୍ ପଢ଼ନ୍ତିନି ତୁମର ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ, ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ତୁମର ବଜେଟ୍ ପଢ଼ନ୍ତି, ମନି ବିଲ୍ ଅଲଗା। ମନି ବିଲ୍ ତୁମର ଏଇସବୁ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି କି ତୁମର କେଉଁଟା ମନି ବିଲ୍ ରୂପରେ ପାସ୍ ହୁଏ, ସେ ବିଲ୍ଟା କ'ଣ ବଜେଟ୍ ଆଉ ତୁମର ଯିବ କି ସବୁ ଜିନିଷରେ, ବଜେଟ୍ଟା ଆମର ବଜେଟ୍ ନା, ପ୍ରତି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ସେଠି ପ୍ରାୟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଯେ ଦେଖିଲ ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ଟା ହେଉଛି, ସେ ବଜେଟ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ପେଶ୍ କରାହେଉଛି ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍? ସେଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। That is difference between bill and the budget. money bill ତମର ଆସେ money bill like issues ଯେଉଁ taxation ରେ ଥିବ, borrowing ରୁ spending of the consolidated fund of India କୋଉଠି କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମନି ବିଲ୍ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ପ୍ରୋଭିଜନ କି ଏଇ ଜିନିଷ ମନି ବିଲ୍ ହେଇପାରିବ? ହଁ ଦେଖୁନ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ମାରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ମିଳିବ କି ତୁମକୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ମନି ବିଲ୍ସ ଇନ୍, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ ବି ଓହ ସରି ସେଇଟା ମନି ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ବିଲ୍ଟାକୁ। The controversial Aadhaar Act of 2016 was passed as a money bill. Money bill is in the Indian Parliament, including the annual financial statement is a type of money bill. But budget तमरा आर ही जिनस annual financial bill, annual financial statement and the appropriation bill, it includes the money bill. But तमरा जो कहले ना तम से जो यही सब जिनस तो एग्जांपल गुड़ा देखो, the Aadhaar Act of 2016 की तमर insolvency and the Bankrupt Act of 2015, this was reportedly introduced as a money bill, although classifies was debated. तो insolvency and bankruptcy code 2015 पढ़ी जो तो इकोनॉमिक्स रे, बैड बैंक अबे जो तुम क्लास रे कही जो सिक्युरिटाइजेशन हुए तुम प्रति शेयर जब तुम मार्केट एवं लॉस खाई जाऊँगी तो तुम सॉरी तुम कंपनी एवं लॉस हो जाऊँगी तो जब तुम कौट लोन आनीच तो से जिनस लोक गोटे बैड बैंक को दब, बैड बैंक माने जे तुम पैसा आण प्लस तुम कि दब सी किसी रख तुम से तो
तुम बैंकरप्ट हो जाइए तो तुम सेयार एत भैल्यू नथिबो तो सेठू सब सेयार को पार्ट पार्ट तुम जो 100टा सेयार अच्छी सब जगह पार्ट पार्ट हम आ प्रति सेयार उपर बिडिंग लगे सेठी तुम जो रेटिंग धर सी डी ए मैं जहाँ भी कम कम थी रेटिंग ताकू बढ़ेबार प्रोसेस को कहती सिक्यूरिटाइजेशन थ्रू तुम प्रति सेयार जिनस इंक्रीज हो जाए तो सहीटा तुम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को मनी बिल रूप में पास कर देते तुम मनी बिल इनक्लूड्स बजेट एंड दी अप्रोप्रिएशन बिल ओके दुटा जाक माने माने मु कहूँ कि बजेट रे तुम जो कहूनी कि बजेट से बजेट भितर तुम ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये सी बट एटा तुम गोटे मनी बिल रूप में पास हो गला जमी तुम केसेस गुड़ा सब थी आधार एक्ट ऑफ 2016 उपर भी केस आसाला कि केमती तुम मनी बिल रूप में माने पास हो गला कारण मनी बिल तुम ऐड कर दो मैंने प्रेसिडेंट से स्पीकर सिग्नेचर बाजीगला मैंने इट इज फाइनल एंड so देखिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा मनी बिल द इंडिया पार्लियामेंट इंक्लूड्स द एनुअल फाइनेंशियल बिल एंड द अप्रोप्रिएशन बिल दीटा जाक भी तुम मनी बिल रूप में नि मनी बिल इज ए ब्रॉड टर्म बास भाव माने गोटे अम्ब्रेला भितर मनी बिल इज द अम्ब्रेला ये सब गोटे गोटे छत्ता माने टाइप ऑफ थिंग है भितर सब आसती एनुअल फाइनेंशियल बिल है कि अप्रोप्रिएशन ସେଇଟା ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ 1110 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ 110 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ सब 110 बेयर एक्ट देखा पड़ो तुम एमती 110 खाली लिखाई मनी बिल कहीं 110 खाली लिखाई मनी बिल तो सैड लिखाई थे मनी बिल कौन देखे देखो ଆଉ ଯୋଉ ବେୟାର ଆକ୍ଟ କଣ ସେଇଟା हाँ कोच 1110 अबे आमे जोड़ा सब पढ़ुं ये सब फिल्टर्ड है आर्टिकल 1110 इट इज एक्चुअली तुम कौन टू सर्व ए डिफरेंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मोस्ट कॉमनली आर्टिकल 100 व्हिच डिफाइंस मनी बिल इट कैन बी रिफर्स टू आर्टिकल 1110 यूनियन चार्टर एत जिन लिखाई मनी बिल देखो ना मारिक तुम देख है 1110 मारिक तुम देख कहीदे तुम बेयर एक्ट कौन से मारिक देख सारीगला जो कौन बेयर एक्ट माने है ये जो तुम आर्टिकल सब ये लिखा जाकर फिल्ट माने ये वर्सन जोटा कि मेन जो टाइम बाहर थे धर जो कौ क्लज रिपिल हो जाए कि कौ क्लज ए नुआ चली से सब जिनस माने पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म रे तुम बेयर एक्ट लिखाई था बेयर एक्ट माने इटा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम आम तुमको जो सर्टकट कहूँ हेडिंग सब मतलब भितर भी जिनस अच्छी सब जोटा कि बेयर एक्ट लिखाई था से पढ़ती लयर्स मैंने अधिका बट आम भी पढ़िया माने भूल जीवन कारण केतटा हार्ड हार्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जो यूर इंटरेस्टेड बेयर एक्ट मार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब लिखाई थो तो गोटे बही पूरा अच्छा इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा जान लो राज्यसभा कैन नॉट बी रिजेक्ट और अमेंड विद इन 14 days फाइनेंस बिल जान लो अच्छा फाइनेंस जान तुम इट्स कंटेन द आर्टिकल 1110 मैटर्स फॉर द अदर मैटर्स ओके देन लाइक मनी बिल इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा ओनली प्रायर जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ये दरकार लाइक द ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा कैन रिजेक्ट जॉइंट सिटिंग इट पॉसिबल लाइक द ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंडेड एंड जॉइंट सिटिंग पॉसिबल फाइनेंस बिल टाइप 1 टाइप 2 आर्टिकल 117 क्लॉज नंबर 3 में 2 कर सॉरी it is expenditure from the consolidated fund of the India treated as the ordinary bill okay can be introduced in either house and this prior recommendation is needed for the consolidated state only the exclusive कोटा थिला mo पाइस नंबर 2 टा ना कोटा देखि कहि कोटा exclusive थिला मोर राज्यसभा can reject or amend फाइनेंस बिल टाइप 1 टा तुम मनी बिल भाया बट तुम ओनली लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस हुए रिकमेंडेशन को ये थाए आटा तुम राज्यसभा रिजेक्ट आउ आमेंड कर फाइनेंस बिल टाइप 1 ने तुम जॉइंट सिटिंग पॉसिबल हुए जी ऑर्डिनरी बिल्स रहा अंडर फाइनेंस बिल टाइप 2 टा तुम 117 नंबर आर्टिकल सबक्लॉज 3 एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ट्रीटेड एज द ऑर्डिनरी बिल छाड़ देखी दो गोटा budget it is constitution refers to the annual financial statement the statement estimated receipt and expenditure of the government of India for the financial year of April 1 to March 31 जाए तापर तुम नुआ लागू हो it is charge expenditure that is called charge non
votable by the parliament and କ'ଣ ତାର emoluments of the president, chairman, speaker and supreme court judges debt charges made from the consolidated fund of the India। ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଯାଏ ତମର ସ୍ପିକର କୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଜଜ୍ କୁ प्रेसिडेंट को तुम मिनिस्टर को जो जो सब सैलरी जाए ये सब ताको सब चार्ज एक्सपेंडिचर अंडर रे पका जाए सेठी कोनोसी भी वोटिंग हुए नाही से जीवो ही जीवो मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया ताको तुम चार्ज एक्सपेंडिचर कुआ जाए आउ तुमरो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड द बजेट रो ना तुमरो आर्टिकल 112 रे लिखा जाई नाही तुम लिखा जाय कोटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हला स्टेट ऑफ द budget जो enactment the president of the sorry stages कौन सब रहा आमर प्रेजेंटेशन हम बजेट रो बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ठे कहते आम प्रति थर देखी जनरल डिस्कशन हुए स्क्रूटिनिटी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज जे कि हाउस रो आर्जन फॉर 3-4 वीक्स भितर सब स्क्रूटिनाइज हुए तुम जी सब डिपार्टमेंटल कमिटीज सब अच्छा कमिटीज आम देखिए पार्लियामेंटारी कमिटीज काम कौन कौ मैंने सब पार्लियामेंटारी कमिटीज अच्छा and voting on the demands for the grant जोटा कि लोकसभा only and passing of the appropriation bill and passing of the finance bill type 1 type 2 ये सब जिन तुम स्टेजेस ऑफ द बजेट एनाक्टमेंट रे हुए तुम फास्ट भोट ऑन डिमांड हुए माने जोटा ओनली तुम लोकसभा रे भी हुए तापर स्क्रूटिनिटी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटी जी सब अच्छा तुम ताद्वारा स्क्रूटिनाइजेशन हुए क्लज बाय क्लज सब देखती केते कौन सब तुम खर्च बार्च होती ता भर पब्लिक अकाउंट कमिटीज अच्छा एस्टिमेट कमिटी अच्छा देखा विषय लास्ट कट मोशंस दैट इज द पॉलिसी कट मोशंस देखु गोटा कोई एग्जाम आसला बोलते दैट इज द मूव्ड ड्यूरिंग ए वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट टू रिड्यूस द अमाउंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी इट इज रिड्यूस टू RS1 टंकाटे को रिड्यूस हो जदि एटा पॉलिसी कट मोशन लगी इकोनॉमी कट मोशन इकोनॉमी कैन बी जो इफेक्टेड इज डिमांडेड रिड्यूस ए स्पेसिफिक अमाउंट जोटा कहला इकोनॉमी कट मोशन टोकन कट मोशन भेंट ए स्पेसिफिक ग्रीवांस डिमांड रिड्यूस टू 100 टका टोकन ने 100 पॉलिसी रे एक इकोनॉमिक कटआउट रे स्पेशल अमाउंट गोटे तुम कहू से तुम जी जा थी से जो तुम कट मोशन सब यूज हुए जो तुम किसी बजेट तरह अधिक आलोकेशन हो जाए कि तुम लगुच कि ये खर्च हवा कथा नुह तो से तुम सब कट मोशन यूज हुए है सरू लास्ट को सब जहाँ जहाँ आम कर बजेट फजेट विषय आउटे देखीद 10-15 स्लाइड अच्छी फंड्स ऑफ जो इंडिया कंसोलिडेटेड फंड हूँ तुम आर्टिकल 2 to 6 अंडर अच्छी ऑल रेवेन्यू लोन्स नीडेड पार्लियामेंटारी लॉ टू विथड्रॉल ऑफकोर्स तोर अप्रोप्रिएशन बिल तोर आसे ना एठू तुम पैसा उठा हेल्ले पार्लियामेंटर परमिशन दरकार पार्लियामेंटारी लॉ दरकार टू विथड्रॉल आ तुम आर्टिकल नंबर 2 to 6 अंडर आमर आस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट कमिटी कौन आर्टिकल 266 अंडर PF तुम जी सेविंग अकाउंट रोचे एक्जिक्यूटिव एक्शन तुम PF कौन जो तुम सब जी सब प्राइवेट जॉब कि तुम प्रोविडेंट फंड बस EPF प्रोविडेंट जहाँ विषय तुम नुआ लेबर कोड आसाला 29टा जाक लेबर कोड को मिनिमाइज करदे डिस्ट्रॉय करके टोटल एवं तुम 4टा लेबर कोड अच्छी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन वेजेस कोड ऑन से तुम 4टा जाक मुझे छाड़देवी सब जगह गोटा गोटा जहाँ भल लगे देखो तापर कंटिन्यूस कारण गोटा गोटार बहुत सेक्शन अच्छे कारण तुम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज तर टोटल 164टा सेक्शन अच्छी भर खाली सब सेक्शन 2 रो 91टा गोटे सब सेक्शन अच्छे सब सामने इम्पोर्टाट नुह जमी तुम कोड ऑन सोशल जदि किसी मेन पॉइंट तुम कहीदेवी तुम तुम मेन्स रे ऐड कर जमी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 वाइज 2020 गुड़ाक आर्टिकल सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 35 तुम गिग वर्कर विषय लिखा जाए जदि गिग वर्कर विषय गिग वर्कर्स बहुत दूसरी न्यूज रे जो जहाँ मानकर तर जो कौन यही सब डिलीवरी बॉयज ये से यही सब गिग वर्कर जाती तो से गिग वर्कर जो मैंने थोड़ा आमर रोचे तो से गिग वर्कर जब किसी सेक्शन किसी एग्जाम तुम आसला जमी तुम मेन्स मुझे देखी कि एगुड़ा तुम सब गिग वर्कर्स तो से गिग वर्कर्स विषय जब तुम आसला तुम यही सब सेक्शन आड कर जिनस नहीं है
Then what is the public account committee? Article number 266 PF तापर continuous fund it is a article 270 267 ने तमरो unforeseen expenditure तमर जेतिकी माने कौन कहल आपातकालीन स्टेज ପାଇଁ continuous fund अछि 500 कोटी टंका रहे तम आपातकालीन स्टेज रे ताको आनिबो पुणी जेतल काम होई जिवो तम मते पैसा हेले पुणी ताको रखि दबो एटा फॉर द इमरजेंसी फंड तमर थाए आर्टिकल 267 ने तम ताको कहती कंटीजेनियस फंड ऑफ द इंडिया देन पब्लिक अकाउंट कमिटी को जानलो कंसोलिडेटेड फंड तुम कौन जानल जोटी कि सब रेवेन्यू रहे तुम जहाँ सब आसे लोन फोन जहाँ सब से सब रहे दैट इज कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया देन योर पब्लिक अकाउंट कमिटी देख लो पीएफ सेविंग सब डिपोजिट सब से तुम रहे देन पोजिशन ऑफ द राज्यसभा इज इक्वल टू द लोकसभा कौन इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ए ऑर्डिनरी बिल ओके इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ए सहित लोकसभा राज्यसभा इक्वाल पावर था इलेक्शन एंड इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आपको तुम जो हाउस रे चाहिए ताको बाहर कर पारिबो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड अप्रूवल ऑफ द इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस एंड प्रोक्लेमेशंस दैट इज सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर पीएम कैन फ्रॉम राज्यसभा जो पीएम किए थिले अरे राज्यसभा सब पीएम किए आम इंडिया रे एत पढ़िल विषय रे इंदिरा गांधी मनमोहन सिंह ये सब राज्यसभा मेंबर जे कि तुम होती पीएम है पोजिशन ऑफ द राज्यसभा इज अनइक्वल कोथरे नहीं फास्ट हूँ तुम मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस रिजेक्ट और अमेंड ओनली इन राज्यसभा खाली 14 दिन तुम नोटिस दे पार जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड बाय द स्पीकर एंड लोकसभा हैज न्यूमेरिकल एडवांसेस बजट कैन बी डिस्कस कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट वोट ऑन जो डिमांड फॉर द ग्रांट तुम हुए एथरे तुम बजेट रे राज्यसभा वोट दे पारिबे नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा सेठी तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन से पास करें पारे ना ये पास हो 50 जनकर ये दरकार दरकार तापर तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन आसो तापर जाकि जिनस जो पास हो कि तुम जहाँ बट तुम एतिक जिनस अनइक्वाल अच्छे बट इक्वाल ये सब जिनसा मेन मेन जिन से जो माने फिल्टराइज माने कर भल ये सब जिन देखिले कौ जिन इक्वाल आम कौ जिन लोकसभा राज्यसभा अनइक्वाल ये सब जिन यही सब एग्जाम में ट्रैप करे है जमा नॉर्मल क्वेश्चन आसबनी स्पीकर केते वर्ष रही अच्छा स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा फेडरल पावर प्रोटेक्टिंग स्टेट इंटरेस्ट according to the article 149 authorize the parliament to make a law on a subject in the state list in national interest resolution by 1/3 member and present and voting माने ये कौच कि स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा माने जदि चाहिए फेडरल पावर मीनिंग कौन आमर गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रोचे गोटे स्टेट गवर्नमेंट रोचे तो जदि पार्लियामेंट चाहिए किसी मात्रा रे स्टेट लिस्ट रे किसी आईन कानून बनई पार तो सी कौच कि कौ को आर्टिकल सब लिखाई अच्छी कि आम पार्लियामेंट आम स्टेट लेजिस्लेटर किसी लिस्ट रे सब लिस्ट कौट लिखाई शेड्यूल नंबर 7 इज टॉक अबाउट द कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड द जो तुम लिस्ट सेंट्रल लिस्ट आम जिते बास आते रेसिडुआरी पावर सब सेंटर हाथ में रही जिन तुम कौ एक्ट रू आसला डिवीजन ऑफ पावर हाँ जे माने कौ काउंसिल एक्ट रू आसला माने जो पढ़ले पॉलिटिकल हिस्ट्री फास्ट तुम ऑल इंडिया फेडरेशन हो 1935 रु अधा जिनस 40% जिनस तुम कॉन्स्टिट्यूशन को आसी तुम जो ऑल इंडिया फेडरेशन होता 1935 रे कि जोटा फेल होगा से तुम थिला सब तुम स्टेट लिस्ट से सब जिन आसी आर्टिकल माने तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रु है तुम पोर्टफोलियो सिस्टम आसला 1961 नु इलेक्शन फास्ट टर्म कॉइन होता 1892 इलेक्शन है बट नॉट अडल्ट फ्रांचाइज 1909 ऑफ द पार्लियामेंट जो टाइम आसते देन पुणी डायरेक्ट इलेक्शन है डायरेक्ट इलेक्शन जाकि मैंने तोर कौन कहलु आम के अडल्ट फ्रांचाइज पाइले जाकि स्वाधीनता पर से तो लिखाई कि आर्टिकल 249 ऑथराइज करे पार्लियामेंट को टू मेक लॉ ऑन ए सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट जदि मेंबर 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड
वोटिंग रे पास कर दउचंती देन आर्टिकल 249 को यूज करके पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट रे भोट करी पारिबो माने किछि आईन कानून बनै पारिबो तापर आर्टिकल 314 ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बोथ वाज कॉमन फॉर सेंटर एंड द स्टेट जेमति आईएएस आईपीएस ये सब होउची एटा भी तमर से 1935 रो एक्ट नु आसीची हला जमर ऑल इंडिया सर्विसेज से टाइम रे बाहर नथला यूपीएससी जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन सीपीएससी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडिया फेडरेशन से टाइम रे हितला से टाइम रे बहुत सारा जिनस आस्तला तम इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन हला पार्लियामेंटरी प्रिविलेज जोटा तुम कलेक्टिव अच्छी इंडिविजुअल भी अच्छी enjoyed by the house as a whole right to publish its report debates and proceeding and prohibits other from doing so से चाहिए तांकर जेतिक रिपोर्ट्स डिबेट तुम गैजेट ऑफ इंडिया जेतिक पब्लिश होची से तांकर से राइट माने से सब जिनस को चाहिए डिबेट हो पारिबो प्रोसीडिंग हो पारिबो बट प्रोहिबिट्स अदर फ्रॉम डूइंग सो मना भी करि पारिबे एंड एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द सीक्रेट सिटिंग आकर सीक्रेट सिटिंग भी हुए तो सेठी से को भी स्ट्रेंजर को आनी पारिबे नहीं एटा तांकर पार्लियामेंटरी कलेक्टिव प्रिविलेजेस मना करि पारिबे तांकर हक अछि तमे जाई के केस दे परिबोनी किछ कर परिबोनी एटा तांकर हाउस रो सीक्रेसी देन पनिश द मेंबर्स और आउटसाइड फॉर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जेम तोर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अछि सेम कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस भी अछि ता पे तुमको पनिश से मेंबर को करा जीवो right to receive immediate information of the arrest detention and conviction of a member जदि कोनोसी मेंबर करे एते सारा डिटेंशन अरेस्ट पर हेछि संगे संग तमे ताको जणाइबो एते नै कि रखे तो संगे संग तमे तार खबर दो एंड कोर्ट प्रोहिबिटेड टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग एटू कोर्ट को इन्वॉल्व करा जाय नहीं कारण एटा ताको हाउस ऑफ मैटर आमे तम कामर मुंडो खेलेउ नाही तमे आम कामरे मुंडो खेलाओ ना आर्टिकल नंबर 50 एग्जीक्यूटिव इज different from judiciary ना सेटा कोन छाड़ो आर्टिकल नंबर 50 executive is separated from the judiciary छाड़ो parliamentary privilege जोड़ा तो इंडिविजुअल था है freedom from the arrest only in the civil case not criminal case तुमको मारती के आसो कहबोनी कि हमको मते सब दरकार privileges civil cases से जो ते तो करप्शन हो छाड़ो 40 days before and after the session बुझ परला तो तुम सेशन न 40 days पूर्व और सेशन न 40 days पर तुमको अरेस्ट करा जाई पारिबो नाही तो तुम सेशन केबे केते सो गैप हुए मासे 2 मास 3 मास भीतर तुम धर फास्ट हला तुम केबे फेब्रुआरी मे सॉरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मे जून गला जुलाई अगस्त तापरे सेप्टेम्बर गला अक्टोबर सॉरी सेप्टेम्बर अक्टोबर गला नवेम्बर और डिसेम्बर तापरे जनवरी गला हाईएस्टली तुम 2 मास मझी सेशन टाइम थाए बाकी सब तो अरेस्ट होबनी कोन भाई फ्रीडम ऑफ द स्पीच नॉट लिएबल टू एनी प्रोसीडिंग हम कौन कहले आमर तांकर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ब्रॉड आमर है तेणु से फ्लोर जहाँ कहे कि सेमती ना एंड एनीथिंग सेड और भोट कैन इन द पार्लियामेंट जहाँ को जाए भोट दे पारे एजेम्पशन फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज और अपीयरिंग एज ए विटनेस व्हेन जो हाउसेस इन सेशन जो सेशन थी सी अपीयरिंग जो विटनेस रूप में अपील हो पारे then privileges of the breach of the privileges of the contempt जदि कि contempt के privilege को breach करूची ताले कौन तामे system अच्छी violation of the any special privileges individual or collectively then example के arresting a MP in the civil case during the session ताको breach of privilege बोली कहती तुम प्रिविलेज को तुम ब्रीच करि पारिबो नाही तुम सेशन भितर को एमपी को अरेस्ट करके नहीं पारिबो नाही हैला एटा तांकर इंडिविजुअल और कलेक्टिंग रो बीच ऑफ प्रिविलेज हे जिवो वायोलेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रिविलेजेस देन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कोन एनी एक्ट दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द हाउस और इट्स मेंबर इन परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन एग्जांपल डिसओबीडियंस टू द लेजिटिमेसी ऑर्डर एंड शाउटिंग स्लोगन्स असल्टिंग मेंबर्स देन तुमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे फ्यूरी स्पीच रे तुम ठिया कि कहि परियो गवर्नमेंट एग्नेस्ट कौन कौन सिस्टम हे बट असल्ट करी सोधी परियोनी कि माने जेमती जो जेमती हाका जो ट्राइब करनथिले ताको जो हम इंडिया रो नुह बट टाइप ऑफ जो कहूँ जो हाका ट्राइब रो जे थिले ताको रिप्रेजेंटेटिव न्यूजीलैंड रो ताको बैन कर देथिले कारण से ताको हाकांकर ये जिनस को स्लाउटिंग स्लोगन टाइप रो ये करथिले गोटे बिल रो एग्नेस्ट रे तो से बेला तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस बोली कह जाय ताको सस्पेंड भी हेतिला से टाइप रो जिनस ताको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कह जाय
तापर पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्लियामेंट्री इज टू लार्ज एंड बिजी टू एग्जामिन एवरी मैटर इन द डिटेल सो देयर आर टू टाइप ऑफ कमिटी प्रेजेंट टू स्क्रूटिनाइज एवरी सेशन जब बजेट सेशन हो जो भी सब बिल आसो जो स्क्रूटिनाइजेशन हुए ये सब कमिटीज माने था स्टैंडिंग कमिटी जो माने परमानेंटली रहते आड कमिटी टेम्पोरारीली जमती कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन टू दिस काम सेठी जो तुमर खास करी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होता है तुम आडहक बोली कह कि टाइम पे कि टाइम लिमिटेड टाइम पे हुए टाइम काम फुल हो गले से कमिटीज डिसबैन हो जाए बैन हो जाए तेनालीर स्टैंडिंग कमिटी कौन कौन तुम की फाइनेंशियल कमिटीज आम इंडिया सब किए अच्छा जमती कि कहली मु कैग जो रिपोर्ट दिए ये सब स्क्रूटिनाइज हुए ये सब पब्लिक अकाउंट कमिटीज अच्छी एस्टिमेट कमिटी अच्छी कमिटी ऑन दी पब्लिक अंडरटेकिंग अच्छी ये सब तुम पॉलिटिक्स रे थिबा सॉरी तुम पार्लियामेंट रे थिबा फाइनेंशियल कमिटीज बट इतनी कमिटीज ना आहरी भी कमिटीज 14टा खंडे पार्लियामेंट्री कमिटीज अच्छी फोरम अच्छी ताको मैं पार्लियामेंट्री कमिटीज चैप्टर देखा बट एति तुम फाइनेंशियल इंपोर्टाट फास्ट कौन ना तुम पब्लिक अकाउंट कमिटी मेंबर एथरे 22 जन था 15 जन लोकसभा आसती 7 जन राज्यसभा आसती इलेक्शन तुम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुए खाली इलेक्शन तुम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन साहाଯ୍य हुए टर्म तंकर 1 ईयर चेयरमैन तंकर अपॉइंटेड बाय द स्पीकर इनवेरिएबली फ्रॉम द ऑपोजिशन सिंस 1967 अपॉइंटेड बाय द स्पीकर खास कर ऑपोजिशन टीम रू ही आपको बाछंती इनवेरिएबल फ्रॉम द ऑपोजिशन सिंस 1967 एंड फंक्शन कौन एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग कैग का काम कौन कैग जो सब ऑडिटिंग करती ये सब तो एग्जामिन करती कौन है कौन ना कौन ठीक ना ये सब तुम पब्लिक अकाउंट कमिटी पार्लियामेंट काम कौन पार्लियामेंट काम हो कैग जो रिपोर्ट देला ये एग्जामिन कर एंड मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर कैबिनेट मिनिस्टर जब कह मु पब्लिक अकाउंट कमिटी जाकि बसबी सेमती हम ना तुमको पोर्टफोलियो दि जाए तुम संभाल पब्लिक अकाउंट कमिटीज रे को मिनिस्टर भी रही ना ओनली मेंबर्स तुम 22 जन रही 15 जन लोकसभा आसती 7 जन राज्यसभा आसती इलेक्शन तुम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन साहाଯ୍य हुए यहाँ तुम 1967 चली आसिक खास कर अपोजिशन को मेन स्पेसिफिक दि जाए एस्टिमेट कमिटी एथे तुम 30 जन मेंबर था सब लोकसभा था तुम पब्लिक अकाउंट कमिटी दिआड़ू था बट एस्टिमेट कमिटी इज ओनली फॉर दी लोकसभा and longest committee of the parliament chairman appointed by the speaker usually from the ruling party ru खास करी आर chairman होती it is the largest committee in the parliament function कौन examine the estimate budget and suggest economy in the public expenditures continuous economy committees है तुमर जीक सब बजेट रे सब जिन आसे एस्टिमेट कमिटी देखिए आगू कौन कौन नुआ नुआ प्लानिंग हो पार कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कौटी कौटी होटी हम कर सजेस्ट ये सब देखिए तुम एस्टिमेट कमिटी बजेट माने मन पकईदेव एस्टिमेट कमिटी आ तुम जो रहा कैग रिपोर्ट तुम देखिए पब्लिक अकाउंट कमिटी जोटि बोथ मेंबर था तुम एस्टिमेट कमिटी ओनली लोकसभा मेंबर था a committee on the public undertaking रे created in 1964 on recommendation of the Krishna Menon committees जोड़ाक देखुव एवढा इंपोर्टाट ये को एग्जाम रे पकई दी पारे committees on the public undertaking is by created by in 1964 on recommendation of the Krishna Menon committee मेंबर आर 22 जन था 15 जन लोकसभा 7 जन राज्यसभा फंक्शन होची एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ द पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज माने किए सब तुम गोटे एग्जांपल को सब पीएसयू अच्छा इंडिया पीएसयू काम कौन सैला मैंने इकोनोमिक्स सैला पीएसयू मैंने कौन जी सब कंपनी अच्छा आम इंडिया सी इंडिया बीएसएनएल सेटा को सब जान जिन पीएसयूज है से मैंने एग्जामिन रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ द पीएसयूज मानकर जो सब अच्छी रिपोर्ट को एमाने एग्जामिन करती से जो ना कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग है क्रिएटेड ऑन 1964 एठी भी बोथ हाउस रो मेंबर था इट असिस्टेड बाय द कैग मन रखियो कैग एठी असिस्ट करती है कृष्णा मेनन कमिटी कैग असिस्ट करे आउ ये सब जी पीएसयू अच्छा रिपोर्ट आउ अकाउंट्स को एमाने एग्जामिन करती जी सब पीएसयू इंडिया अच्छा
अच्छा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी से सब कौन DRSC टोटल मेंबर आर 24 जन कवरिंग दी ऑल मिनिस्टर जुरिडिक्शन आर रोची 8 वर्क अंडर दी राज्यसभा एंड 16 वर्क अंडर दी लोकसभा कंपोजिशन आर 31टा मेंबर थांती तुम कौन 21 जन लोकसभा 10 जन राज्यसभा रोल हूँ स्क्रूटिनाइज डिमांड फॉर द ग्रांट बिल रिफर टू देम एंड एनुअल रिपोर्ट फॉर द मिनिस्टर आपको कहते डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी टोटाल 24टा कमिटी अच्छा जी मिनिस्ट्री अच्छा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज थाए है जुरिडिक्शन 8 वर्क्स अंडर दी राज्यसभा और 6टा अच्छा लोकसभा अंडर रे मिसिकी 24टा तुम कमिटी हो गले 8टा तुम राज्यसभा 16टा तुम लोकसभा बट कंपोजिशन 31टा मेंबर था प्रति कमिटी 31टा मेंबर था 21टा जाती लोकसभा 10टा जाती राज्यसभा ये कौन करती स्क्रूटिनाइज दी डिमांड फॉर द ग्रांट बिल्स टू देम एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री वाइज जो मिनिस्ट्री वाइज जो मैंने सब भीतर काम सब हुए सब जहाँ भी केते ग्रांट हो कौन हो स्क्रूटिनाइज हम से सब जिन तुम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को हाथ में थाए सबू मिनिस्ट्री गोटे गोटे कमिटीज थाए कवरिंग ऑल मिनिस्ट्रीज 24टा टोटाल अच्छा 8टा तुम राज्यसभा 16टा लोकसभा कंपोजिशन 31टा आउ एमती सब अच्छी 21टा लोकसभा आउ 10टा राज्यसभा ethics committee to enforce the code of the conduct of the members examine the cases of the misconduct and recommends the punishment ensure the code of conduct of the members सब जिन ठीक ठाक कंडक्ट होना ना से सब देखे तुम ethics committee currently recommended explanation of MP Mahua Mitro in case for the query allegations 17 लोकसभा तुम माने करेन्ट कंटेस्ट जो एथिक्स कमिटी तुम कौन दे रिकमेंडेशन एक्सप्रेसिव ऑफ दी MP महुआ मोत्रा को केस रे कैश फॉर क्वेरी केस रे जो एलिगेशन किए देछि तुम एथिक्स कमिटी ही देछि तेणु ये देखिबो सब जिनस कोड ऑफ कंडक्ट अनुसार चलछि ना नहीं जदि किसी मिसकंडक्ट होछि तो ये एई भले एग्जांपल दे परिबो MP महुआ मोत्रा कैश करिया को मेंस रे लिखियो बोली तो जाडी गेछि कि असुविधा नहीं हैला current affairs of the suspension of the MPs winter session 2023 रे record 146 member MP suspended for disrupting proceedings power कौन लोकसभा रे रूल 373 374 374 clause A speaker can name a member automatic suspension speaker खातिर अछि राज्यसभा रूल नंबर 255 ये सब मेन्स पॉइंट ऐड करदे बढ़िया माने सब आउ सब लोकसभा राज्यसभा कोड ऑफ कंडक्ट बस देखियो कि मेन मेन जिन कि लोकसभा हाथ में को पावर अच्छी स्पीकर हाथ में राज्यसभा रे रूल 255 और 256 अनुसार चेयरमैन नेम्स हाउस मूव द मोशन एंड चेयरमैन कैन नॉट सस्पेंड ऑन हिज ओन चेयरमैन ताको ओन ने सस्पेंड करि परिबे नाही से मोशन मूव करि परिबे टर्मिनेशन कैन बी रिवोक्ड बाय द हाउस जदि रिवोक करदेला देन टर्मिनेशन इज डन सस्पेंशन एबे तो करेंटली कौन सब जिन अच्छी डिजिटल संसद एंड दी पेपरलेस पार्लियामेंट निभा ये सब एग्जाम इंपोर्टेंट निभा नेशनल ई विधान एप्लिकेशन मेकिंग लेजिस्लेटर्स पेपरलेस दैट इज निभा तो फर्स्ट टाइम जमी तुम को वर्ष देते आम निर्मला सीतारमण इन टैब रे तुम बजेट पेश करते को ईयर देखियो digital Sansad app for the MPs to assess the services and citizen to view proceedings. Digital Sansad app जोटी की for MPs to assess services and citizen to view proceeding केते कोन ताकर प्रोसीड हला से सब जिंस तुम डिजिटल संसद ऐप रे देखि पारिबो गोटेला निभा नेशनल ई विधान एप्लिकेशन आ डिजिटल संसद एप्लिकेशन देन बजेट बिकम पेपरलेस इन 2020 लिखित देજો छाड़ 2021 ने तुम बजेट टोटल पेपरलेसली बाय द निर्मला सीतारमण फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस एड्रेस करथिले फुल्ली इन द बजेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज पढ़ले किए तो निर्मला सीतारमण फोकस ऑन द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कौन सब तो क्वेश्चन आसी राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ द लोकसभा इन द मैटर ऑफ द क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडियन सर्विसेज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन the removal of the government making the cut motion देखा तो
Rajya Sabha power is equal to with the Lok Sabha in amending the constitution. Joint sitting when sitting. For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filled by anyone residing in India, any resident of the constituency from which the election is to be contested, or any citizen of the India whose name appears in the electoral roll of the constituency. He is able for a election to Lok Sabha. A nominated paper can be filed by him. ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତମର ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କୁହ, ନହେଲେ ଯିବା। କ'ଣ ତମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ। এটা ପଢିବୁ, ପଢିଲା ପରେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ବଜେଟ୍ ଆ ବିଷୟରେ ବୁଝି ପାରିଲ ତ, ନା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଲା? ହଁ, ବଜେଟ୍ ବୁଝ।